Friends, now we should start the session of Umesh Sharma ji. First of all, Sanjay, we'll start now. Yes, yes. Go ahead, please. Okay. First of all, I will try to, a little bit brief about this today's session. The topic of today's session is it is suggested by our learned speaker only. This composite supply, even most of us, sometimes fail to understand that what will be the rate of that supply. Am I audible to all? Yeah, yeah. Okay, so that is the major concern. So what will be the rate of GST? And that is the very complex thing which we understand, and that is the basic crux of composite supply. What I understand. Definitely, Umesh sir will explain it in detail with the provisions and some case laws also. I hope so. Uh, uh, See, let me introduce Umesh Sharma sir. However, he used to attend or take this webinar and seminar very regularly in our branch. But see, he's a very senior speaker, and we always love to hear him. He is mainly from Aurangabad, and he is the 47th rank holder in CA Foundation exams. Umesh Sharma ji has done his diploma in information system, that is DISA. He has been the vice chairman of WARC of ICI for the year 2019-20, youngest chairman of Aurangabad branch in 2002 when we were struggling to set our practice, and at that point of time, he was a chairman. I'm talking about myself, I don't know about others. But in 2002, we were struggling in Navi Mumbai to set up the practice. And he is the author of popular tax articles series based on Krishna and Arjuna. I think we have heard that Krishna and Arjuna conversation. Even I could not understand that the other fellow who used to, discuss with him, keeping himself as a Arjuna. Conversation on Karniti. His background is also today Karniti. So, but he has two books on Karniti he has published for income tax and GST for common man in simple way. Best paper writer in RRC in 2013 by STPM. He has given lectures for GST for diploma in taxation course of MP Law College, Aurangabad. He is a regular speaker at WARC and various branches of ICI on GST, chief editor and the main compiler of MVAT audit manual. He has been the contributor for revised and updated edition of a guide to MVAT audit and background material on GST. He has authored of book he is the author of book published on GST, CHA Sampurna Kaida Marathi, that is introduction of GST law in simple way in Marathi language. So with lots of accomplishments and lots of academic knowledge and the presentation skill, an excellent presentation skill, I can say, in a very which can be digested by a common person, by an aam admi. That is the beauty of his presentation. With this brief introduction, I would like to invite you, sir, to address our participant of Navi Mumbai branch. Welcome to Navi Mumbai branch again, sir. Yes, thank you. Good morning, Sharma ji. Good morning, Sanjay Bhujbal ji. Good morning, Sanjay Nikam ji, Jayant Tandal ji, and all the office bearers of Navi Mumbai branch and past chairman, senior फड़के जी. जैसे सर ने कहा कि ये जो डिस्कशन है ये हमारा कंपोजिट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर है और उसके अलग अलग टैक्स और उसके अलग अलग एंगल्स के ऊपर. तो लेट मी वन मोर थिंग कि आज जो अपना डिस्कशन है उसके अंदर हम वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट से भी इसको जोड़ रहे हैं क्योंकि कंपोजिट सप्लाई और वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट ये दो बहुत कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट बन जाते हैं. तो इसकी पढ़ाई हमको अगर करनी है कि क्या रेट ऑफ टैक्स आना चाहिए, तो अगर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट को हम साइड में कर देंगे, उसको प्रॉपरली समझ जाएंगे, तो ये कंपोजिट सप्लाई की पूरी गुत्थी सुलझ जाएगी. और रही बात कि शर्मा सर ने जो कहा कि एक सहज और साधारण भाषा में नॉलेज पेश करने की मेरी एक इच्छा रहती है.
सो आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट एंड दिस इज सेकेंड टाइम कि एक 15-20 दिनों में फिर से आया हूँ, तो यही कहूंगा कि फिर वही दिल लाया हूँ, आपके पास आया हूँ। तो लेट्स स्टडी एंड गो अहेड विद द सेशन। मेरे को ये बताइए कि मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कोई आई एम शेयरिंग द स्क्रीन नाउ। नहीं आ गया यस मेरा सर, आ स्क्रीन दिख गया रहा है, है? आ गया है, आ गया है सर। ओके लेकिन ओके, हाँ, थैंक यू। यस बोलिए उसको सर, बोलिए। लेकिन ये फुल स्क्रीन कीजिए, फुल स्क्रीन उसको। फुल स्क्रीन ही है। अच्छा, फुल। वो आपके इधर आपको फुल स्क्रीन करना पड़ेगा जूम के सेटिंग्स में, मेरे इधर फुल स्क्रीन है। ओके ओके उमेश जी फुल स्क्रीन है सर। ओके ओके। Go ahead. ओके चलो संजय सर, थैंक यू। सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। तो आज का जो अपना टॉपिक है ये डिटेल एनालिसिस ऑफ कंपोजिट सप्लाई इन द वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है। और कंपोजिट सप्लाई को जब पढ़ाई करना चाहिए तो मुझे ऐसा लगता है कि वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की भी जानकारी अपने को लेना बहुत जरूरी है। तो आज जो अपना टेबल ऑफ कंटेंट है इसमें ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट हम देखेंगे कि ये पहले क्या था सर्विस टैक्स में, वैट के अंदर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। जो पुराने लोग हैं उनको तो पता ही है, बट फॉर बिगिनर्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट हिस्ट्री, क्योंकि ये वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट वर्ड कहाँ से आया, फिर इसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्रोविजन सीजीएसटी एसजीएसटी एक्ट के अंदर क्या है, तो मोस्ट प्रोबेबली सीजीएसटी एक्ट में ही हम देखेंगे। फिर ये वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट और कंपोजिट सप्लाई के अंदर ये इमूवेबल प्रॉपर्टी का भी बहुत बड़ा प्रोमिनेंस आ जाता है, क्योंकि जीएसटी के अंदर जो कंपोजिट सप्लाई है वो एक डेफिनेशन दी गई है जिसको हमको देखना है कि व्हाट इज मीन बाय कंपोजिट सप्लाई। फिर हमको टेस्ट करना है कि व्हाट इज मीन बाय वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि एवरी वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट इज अ कंपोजिट सप्लाई बट एवरी कंपोजिट सप्लाई मे नॉट बी अ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। तो मैं क्या बोल रहा हूं ये सब लोगों को ध्यान में देना बहुत जरूरी है कि कंपोजिट सप्लाई ये बड़ा डेफिनेशन हो गया। कंपोजिट सप्लाई के अंदर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट जरूर आ सकता है, पर ये भी हमको देखना जरूरी है कि एवरी कंपोजिट सप्लाई इज नॉट अ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। तो ये एक कंसेप्ट अपने को ध्यान में देना है, क्योंकि अगर टैक्स रेट निकालने हैं तो कंपोजिट सप्लाई को दो इसमें स्प्लिट करें कि वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट वाला कौन सा है और अदर देन वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट कंपोजिट सप्लाई कितना है, तो फिर हमारे को टैक्स रेट बड़े आसानी से मिल जाएंगे। फिर हमको ये देखना है कि वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट फाइंड आउट करने के लिए हमको इमूवेबल प्रॉपर्टी के भी डेफिनेशन देखने पड़ेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हम देखेंगे। फिर बाद में कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन सीजीएसटी एक्ट के भी हम देखेंगे। फिर कौन से वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है जो कंपोजिट सप्लाई में आते हैं और जो एग्जम्प्ट है, फिर कौन से कंपोजिट सप्लाई के वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है जो टैक्सेबल है, फिर कौन कौन से एआर हमको मिल सकते हैं कि जिसको हम बोलते हैं एडवांस रूलिंग, वो हम देखेंगे। फिर सबसे मेन आगे आएगा वैल्यू ऑफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की कैसे निकाले, क्योंकि जैसे हम अगर देखेंगे, मैं जस्ट एक एग्जांपल देता हूं कि नवी मुंबई में कोई बिल्डर है, बिल्डर ने क्या बोला कि मैं फ्लैट भी देता हूं और फ्लैट के साथ में मैं आपको एक मारुति अल्टो भी देता हूं 5 लाख रुपए की। अब फ्लैट दिया 1 करोड़ का और साथ में मारुति अल्टो भी दे दी 5 लाख की, तो पूरा मिलके उसने 1 करोड़ के अंदर वो हमको दिया है। तो अब इसके ऊपर टैक्स कैसे लगेगा कि ये कंपोजिट सप्लाई मानी जाएगी या मारुति कार का अलग से रेट निकलेगा या वो जो फ्लैट दे रहा है उसके हिसाब से रेट निकलेगा, क्या होगा ये ट्रांजैक्शन का। क्योंकि मैंने बहुत ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबके सामने रख दिया है आप लोगों के सामने कि एक बिल्डर कार दे रहा है फ्लैट के साथ, तो क्या रेट ऑफ टैक्स आएगा। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल टू स्टडी। ये भी हमको देखना चाहिए कि क्या हो सकता है, तो इसका भी हम आगे देखेंगे क्या इसका उत्तर है इस प्रश्न का। फिर वैल्यू ऑफ सप्लाई भी हमको निकालना है कि कौन से वैल्यू के ऊपर टैक्स लगेगा। फिर सबसे मेन जो आगे इश्यूज आते हैं वो है इनपुट टैक्स क्रेडिट के, फिर आते हैं ब्लॉक क्रेडिट के, क्योंकि ब्लॉक क्रेडिट के अंदर इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर आईटीसी नहीं मिल रहा है, तो कंपोजिट सप्लाई के ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो क्या होगा। फिर ये आईटीसी के ऊपर भी बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट्स भी आए हैं और ये जजमेंट्स के अंदर जैसे मैं थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री आपको दूं
तो हम झगड़ा कर रहे हैं, सफारी रिट्रीट का भी जजमेंट आया है। सफारी रिट्रीट में ये बोलते हैं कि कोई मॉल बना रहा है तो मॉल बनाने के लिए जो वो आईटीसी ले रहा है वो उसको मिलना चाहिए, क्योंकि वो आगे रेंट में देगा तो वो बिजनेस है, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी का रेंट है विच इज अ टैक्सेबल सर्विस, तो आईटीसी मिलना चाहिए। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये भी हो जाता है कि कहाँ कहाँ पे आईटीसी मिलता है एज अ रेसिपिएंट और कहाँ कहाँ पे नहीं मिल रहा है। उसके रिलेटेड कोई एआरस भी है क्या, वो भी हम देखेंगे। और आखिरी में है कंक्लूजन्स और बाद में थैंक्स। तो ये अपना पूरा एक एजेंडा है। तो लेट्स स्टार्ट इन वेरी सिंपल एंड वेरी स्टेप बाय स्टेप अप्रोच। तो पहले तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीफ हिस्ट्री, क्योंकि वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट ये वैट के अंदर भी आया था और वैट के अंदर गैनॉन ड्रंकरली की ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था। उसके अंदर उन्होंने ये कहा कि वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में डोमिनेंट इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है और वो रहता है एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क्स, यानी हमको कोई काम करके लेना है, हमको कोई चीज बना के लेनी है जिसके अंदर वैल्यू ऑफ गुड्स भी इन्वॉल्व है और वैल्यू ऑफ सर्विसेज भी इन्वॉल्व है। तो वो इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट्स का भी कंसेप्ट पहले चलता था, पर बाद में उसको बोला कि आप इसको ब्रेक कर सकते हो, यू कैन ब्रेक इनटू वैल्यू ऑफ गुड्स एंड वैल्यू ऑफ सर्विसेज। तो इसके वजह से बाद में गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अमेंडमेंट किया, आर्टिकल 366(29)A डाला और स्टेट्स को पावर दे दिया कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स इन वेदर और इन द सेम फॉर्म इन्वॉल्व इन द एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट हुआ कि वैट के अंदर भी जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी काम एग्जीक्यूट कर रहे हो, उसमें जो गुड्स जा रहे हैं उसके ऊपर वैट लगाने का अधिकार दिया। तो वैट के अंदर महाराष्ट्र के अंदर हमने ऑलरेडी पहले देखा हुआ है कि रूल 58 था, उसके अंदर एक्चुअल बेसिस पे टैक्स भरते थे, हम परसेंटेज बेसिस पे भरते थे और कंपोजिट स्कीम, कंपोजिशन स्कीम भी थी। जैसे मैंने अगर रेस्टोरेंट सर्विसेज है तो रेस्टोरेंट में हम खाना भी खा रहे हैं, सर्विसेज भी ले रहे हैं, तो उसके ऊपर क्या रेट ऑफ टैक्स लगना चाहिए, तो उसके लिए सेपरेट शेड्यूल एंट्री थी, कंपोजिशन स्कीम थे। तो ये सब अलग अलग चीजें थी। अब बिल्डर्स के केस में भी होता था कि बिल्डर्स ने काम किया है या मान लो कि कॉन्ट्रैक्टर ने भी काम किया है, हमने उसको कहा कि कंपाउंड वॉल बना के दे, तो उसने सीमेंट, रेती, खड़ी, डब्बर सब खुद लेके आया और हमको कंपाउंड वॉल बना के दी। या फिर हमने बोला कि भाई सब हम देंगे, गुड्स, सीमेंट, रेती, खड़ी, और तू सिर्फ सर्विसेज दे, तो वो सर्विसेज का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था। तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में फिर कैसे वैल्यू निकालना, तो ये सारी चीजें वैट के अंदर फिर आई। फिर सर्विस टैक्स के अंदर भी ये आना शुरू हो गया। सर्विस टैक्स के अंदर 1994 के अंदर फाइनेंस एक्ट में आया कि जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स वाला रहता है उसके अंदर जो सर्विस कंपोनेंट रहेगा अदर देन गुड्स, जो कंस्ट्रक्शन में, इरेक्शन में यूज होगा, मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस के अंदर, तो वहां पर उसको डिक्लेयर्ड सर्विस में ऐड कर दिया गया और डिक्लेयर्ड सर्विस के थ्रू सर्विस टैक्स में टैक्स लगाया गया। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पर देखने मिलेगी कि जो हमारा वैट है, वैट के अंदर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी वर्ड यूज हो रहा है, यानी यहाँ पर मूवेबल और इमूवेबल शब्द नहीं है। आप कोई भी चीज बनाओ, मूवेबल बनाओ या इमूवेबल बनाओ, उसमें अगर गुड्स जा रहे थे तो वो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था। पर सर्विस टैक्स के अंदर एनी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी वर्ड यहाँ पर यूज हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए क्योंकि जीएसटी का जो बेस है ये वैट और सर्विस टैक्स से मिलता जुलता है। तो जीएसटी में क्या हुआ, जीएसटी में वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट को सिर्फ और सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी से लिंक कर दिया, इमूवेबल प्रॉपर्टी से लिंक कर दिया। इमूवेबल प्रॉपर्टी से लिंक किया मतलब क्या हो गया कि कोई भी कंपोजिट सप्लाई अगर है, अगर उसको वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट हमको बोलना है तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड ही चाहिए। अगर मूवेबल प्रॉपर्टी का वो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट होता है तो मूवेबल प्रॉपर्टी का अगर कोई ट्रांजैक्शन होता है तो वो कंपोजिट सप्लाई में जा सकता है, पर वो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में नहीं जाएगा। सीधा मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूं आपको। मैंने कार खरीदी, कार के साथ में उसने मुझे मैटिंग भी दे दिया, उसके साथ में उसने मुझे इंश्योरेंस भी दे दिया, उसके साथ में उसने वारंटी भी दे दी। अब इसमें कार के साथ में मुझे मैटिंग मिली, उसमें इंश्योरेंस भी मिला, उसके अंदर मुझे वारंटी भी मिली।
तो अब ये कंपोजिट कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब कंपोजिट सप्लाई हो गया। कंपोजिट सप्लाई के अंदर क्या हुआ, कार का सप्लाई हुआ, जिसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल सप्लाई। तो कार के रेट से ही पूरे ट्रांजैक्शन के ऊपर टैक्स लगा। अब फ्लैट बेच रहा है बिल्डर और साथ में वो बोल रहा है कि मैं आपको कार भी दे दूंगा आप अगर मेरी ये बुकिंग करेंगे लॉन्चिंग के अंदर। तो क्या ये वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट ट्रांजैक्शन होगी क्या? फ्लैट का ही जो रेट है वही रेट से कार का भी अपने को टैक्स लगाना पड़ेगा क्या बिल्डर को? तो ये सारी की सारी चीजें यहां जाके रुकती है, वेदर इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो व्हाट इज मीन बाय इमूवेबल प्रॉपर्टी हमको देखना बहुत जरूरी है आगे। तो अब हम शुरू करते हैं हमारा सफर कि जीएसटी आने के बाद में कैसा झगड़ा शुरू हुआ। जीएसटी आने के बाद में कंपोजिट सप्लाई का डेफिनेशन आ गया, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन आ गया। अब कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स जो थे ये सर्विस टैक्स में और वैट एरा में आए थे और वही कॉन्ट्रैक्ट अब जीएसटी के अंदर भी आ गए थे। तो सबसे पहला बवाल शुरू हुआ हमारा रेलवेज का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। यहाँ पर कोयम्बतूर का मद्रास हाईकोर्ट का जजमेंट है। वहां पर उन्होंने बोला कि भाई हम गवर्नमेंट के साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने शुरुआत में हमको वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का रेट नहीं दिया था, वहां पर वैट का रेट अलग था, सर्विस टैक्स का रेट अलग था। अब जीएसटी में हम जा रहे हैं तो हमारे को 18% रेट ऑफ टैक्स लग रहा है। तो ये बड़ी डिफिकल्टी हमको हो रही है ये कि गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर 18% जा रहा है और इंक्लूसिव ऑफ टैक्स है, तो हमारे को कोई ना कोई रिलीफ दो। तो यहाँ पर उन्होंने फिर आखिरी में सितंबर 2017 में 12% रेट ऑफ टैक्स किया, जो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है, कंपोजिट सप्लाई है, गवर्नमेंट को जो हम कर रहे हैं उसके ऊपर। तो यहाँ पर रेट बढ़ गए ऐसा लगा, क्योंकि वैट के अंदर कम रेट था, सर्विस टैक्स में रेट कम था, और जैसे ही वो कंपोजिट सप्लाई में वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट हो गया, गवर्नमेंट को दे रहे थे तो 18% में जा रहा था, तो गवर्नमेंट ने उसको 12% रेट ऑफ टैक्स के अंदर रिड्यूस किया। फिर बाद में हाईकोर्ट का, इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट है, इसके अंदर भी वही केस आई कि वैट हमको 2% भरना पड़ता था। पहले हमारे को सर्विस टैक्स भी भरना नहीं पड़ रहा था क्योंकि हम रेलवेज को सप्लाई कर रहे थे तो सर्विसेज एग्जाम थी, पर अब हमारे को 12% रेलवे को लगाना पड़ रहा है। तो यहाँ पर यही आया जजमेंट कि पिटिशनर उसका पुराना भले ही कॉन्ट्रैक्ट हो पर सर्विसेज वो जीएसटी में दे रहा है, तो जो रेट है वो जीएसटी के हिसाब से ही लगेंगे, भले ही पुराना कॉन्ट्रैक्ट हो पर रेट तो लगेंगे जीएसटी के हिसाब से। फिर दुर्गा कंस्ट्रक्शंस का, इंफ्रास्ट्रक्चर्स का, कर्नाटका का एआर है। यहाँ पर जो मेन मुद्दा है वो फिर से यहाँ पर आया बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के केस में कि जो मेरे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स थे, जो मेरे बिल्डर्स के प्रोजेक्ट चल रहे थे, वो मेरे पार्शियली कंप्लीटेड फ्लैट्स के थे। तो यहाँ पर यही आया कि सर्विस टैक्स जो आपने पुराना भरा है वो आपको भरना ही पड़ेगा प्रोपोर्शनेट बेसिस पे कि जी कितना आपने कंस्ट्रक्शन किया है 30 जून 2017 के पहले, तो सर्विस टैक्स भरो, और 1 जुलाई 2017 के बाद में प्रोपोर्शनेट जीएसटी आप भरेंगे, वो हिसाब से ही आपका काम चलेगा ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स के अंदर। तो ये एक बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के लिए एक इम्पोर्टेंट जजमेंट है जो हमारे को काम आता है कि पहले ये वैट और सर्विस टैक्स अलग से था, बाद में जीएसटी में आ गया, तो क्या रेट ऑफ टैक्स लगना चाहिए। तो ये एक पुराना बैकग्राउंड था कि जो सर्विस टैक्स से हम वैट में आए। अब हम देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है कंपोजिट सप्लाई की, क्या इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है टैक्सेबल सप्लाई, एग्जाम सप्लाई, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की, और ये सारी चीजों की, जिससे हमारे को सिंप्लीफाई हो जाए कि कौन से कॉन्ट्रैक्ट पे क्या रेट ऑफ टैक्स लगना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कंपोजिट सप्लाई का डेफिनेशन। ये डेफिनेशन दिया है 2 सबसेक्शन 30 के अंदर। तो कंपोजिट सप्लाई मींस अ सप्लाई मेड बाय अ टैक्सेबल पर्सन टू अ रेसिपिएंट फॉर 2 और मोर टैक्सेबल सप्लाईज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है टैक्सेबल सप्लाईज, कि 2 टैक्सेबल सप्लाईज होने चाहिए। जैसे हमने कार लिया तो कार भी टैक्सेबल है, इंश्योरेंस ले रहे हैं वो भी टैक्सेबल है, तो ये दोनों मिलके हमने एक साथ अगर कीमत जोड़ दी, सामने वाले ने बोला कि वारंटी भी इसके अंदर आ गई, तो गुड्स भी आ गए, सर्विसेज भी आ गई, एक ही कीमत लग गई, तो
ये केस के अंदर फिर वो कंपोजिट सप्लाई हो जाएगा और वो नेचुरली बंडल्ड भी चाहिए, यानी आर्टिफिशियल बंडलिंग नहीं चाहिए। तो ये भी हम देखेंगे कि आगे कैसा होता है। जैसा आर्टिफिशियल बंडलिंग मतलब क्या, हम मॉल के अंदर गए, मॉल के अंदर वहां पे शैम्पू रखा हुआ था और शैम्पू के साथ में उन्होंने साबुन भी दे दिया कि ये शैम्पू लोगे तो ये 2 साबुन भी उसके साथ में आप ले सकते हो, और उसको उन्होंने व्रैप करके रख दिया कि शैम्पू के साथ में साबुन भी। तो ये केस के अंदर वो कंपोजिट सप्लाई नहीं होगा, क्योंकि वो नेचुरली बंडल नहीं है। आप साबुन भी अलग से खरीद सकते हो और आप शैम्पू भी अलग खरीद सकते हो। फिर वो क्या करते हैं कि दोनों का बिलिंग अलग अलग करते हैं, शैम्पू की बिलिंग अलग, सोप की बिलिंग अलग। हो सकता है कि ये मिक्स सप्लाई के अंदर भी टैक्सेबल हो जाए अगर वो एक ही कीमत ले रहा है। पर मॉल वाला क्या करता है, शैम्पू अलग से लगाएगा और साबुन के भी रेट अलग से लगाएगा, तो वो स्प्लिट करता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंपोजिट सप्लाई को हम स्प्लिट कर सकते हैं क्या, वो भी एक चीज हमको देखना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर कंपोजिट सप्लाई में सबसे मेन है प्रिंसिपल सप्लाई, कि जो जिसके ऊपर से हम रेट ऑफ टैक्स लगाएंगे। तो अब हमारा जो सवाल आ रहा है फिर से वही हम ले रहे हैं कि बिल्डर ने फ्लैट के साथ में कार अगर दी है तो व्हाट इज द प्रिंसिपल सप्लाई। प्रिंसिपल सप्लाई तो हमारे लिए तो फ्लैट ही हुआ, तो फिर उस हिसाब से रेट ऑफ टैक्स उसके ऊपर लगना चाहिए क्या। फिर वो नेचुरली बंडल है क्या, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम फ्लैट खरीदने जा रहे हैं और हमको कार भी खरीदना है, ऐसा है क्या, नहीं, इट्स नॉट अ नेचुरली बंडल। तो व्हाट इज मीन बाय नेचुरली बंडल, ये कहीं डिफाइन नहीं किया है, पर ये कॉमन पार्लेंस में हमको देखना है, तो उसके एग्जांपल्स भी हम आगे देखेंगे। फिर टैक्सेबल सप्लाई का डेफिनेशन दिया है, क्योंकि कंपोजिट सप्लाई के अंदर 2 टैक्सेबल सप्लाईज चाहिए। अब टैक्सेबल सप्लाईज का मतलब ये है कि जहां पर टैक्स लेवी होता है। अब एक डिबेट ऐसा भी है कि नील रेट ऑफ टैक्स इज ऑल्सो अ टैक्सेबल सप्लाई। क्या हम डिस्कस कर रहे हैं कि नील रेट ऑफ टैक्स यानी 0 रेट ऑफ टैक्स इज ऑल्सो टैक्सेबल सप्लाई, क्योंकि उसके ऊपर 0 रेट से टैक्स लेवी हो रहा है। पर एग्जाम सप्लाई की डेफिनेशन भी दी गई है और उसमें स्पेसिफिकली लिखा है कि जिसको नील रेट आता है वो एग्जाम सप्लाई में जाएगा। तो एग्जाम सप्लाई में स्पेसिफिकली उन्होंने इंक्लूड कर दिया है नील रेट ऑफ टैक्स। तो टैक्सेबल सप्लाईज मतलब हमारे लिए 5%, 12%, 18%, 28% वाले आइटम, और नील रेट मतलब हमारे 0 रेट ऑफ आइटम एग्जाम सप्लाई वाले जिसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता। तो अब बहुत एक इंपॉर्टेंट मैं क्वेश्चन फिर से आप सबके सामने रख रहा हूं कि जैसे मैं तो उसको प्रमोट नहीं करूंगा, पर होटल्स में जाते हैं तो कॉकटेल लेते हैं, कॉकटेल के अंदर अल्कोहल आता है, उसके अंदर जूस आता है, तो ये कंपोजिट सप्लाई हुआ क्या, क्योंकि अल्कोहल इज अ नॉन जीएसटी, इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता। जूस इज अ टैक्सेबल, तो अब ये दोनों मिक्स कर दिया तो इसके ऊपर जीएसटी लगेगा क्या। तो यहां पर टैक्सेबल सप्लाई दिया है, 2 और मोर टैक्सेबल सप्लाई। व्हेन अल्कोहल इज अ नॉन जीएसटी तो वो कंपोजिट सप्लाई से बाहर चला जाता है, तो पूरा की पूरा वो कंपोजिट सप्लाई से बाहर चला जाएगा क्या। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये हमारे को सबको ध्यान में देना है कि अगर एक भी एग्जाम सप्लाई आ जाता है उसके अंदर तो वो कंपोजिट सप्लाई में नहीं जा सकता। अब जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, चावल हमने खेत से उठाए और वो चावल लेके हम मंडी में जा रहे हैं, मैंने खरीदा चावल, उसके साथ में ट्रांसपोर्टेशन भी आ गया। अब ये चावल एग्जम्प्ट है, ट्रांसपोर्टेशन टैक्सेबल है, पर ये पूरा के पूरा कंपोजिट सप्लाई में जाके बैठेगा क्या, नहीं बैठ सकता, क्योंकि इसमें टैक्सेबल सप्लाईज नहीं है दोनों। चावल इज एग्जम्प्ट एंड ट्रांसपोर्टेशन इज टैक्सेबल। तो ये केस में हमको फिर शेड्यूल एंट्री में जाना चाहिए कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इज एग्जम्प्ट, इज ऑल्सो एग्जम्प्ट, तो फिर इस बहाने से वो पूरा के पूरा एग्जम्प्ट हो जाता है। तो टैक्सेबल सप्लाई ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि 2 टैक्सेबल एलिमेंट इसके अंदर चाहिए। फिर आते हैं हम वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के इसमें। तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफाइन किया है, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट मींस अ contract of a building, construction, fabrication, completion, erection, installation, fitting of any immovable property
वेयर इन द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट आ गया वर्ड, इज इन्वॉल्व इन द एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की जो जीएसटी में डेफिनेशन है ये इमूवेबल प्रॉपर्टी से लिंक की गई है। तो अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी का काम हो रहा है तो ही वो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है। अब मैं आपको एक सिंपल भाषा में समझा देता हूं। मेरे घर पे टेबल है, टेबल खराब हो गया, मैंने कारपेंटर को बुलाया और उसको बोला भाई इसको थोड़ा सा ठीक कर दे, तो बोला ठीक है इसको पेंट वेंट करना पड़ेगा, थोड़ा सा मैं लकड़ी विकड़ी भी बदल देता हूँ और मैं उसका कुशन वुशन बदल देता हूँ। तो ये हो गया वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि वो कुशन भी लेके आ रहा है, फेविकॉल भी लेके आ रहा है, लकड़ी भी लेके आ रहा है, पेंट भी लेके आ रहा है, पर वो किसका कर रहा है? टेबल का। अब नाउ टेबल इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी, तो टेबल मूवेबल प्रॉपर्टी रहने से वो कंपोजिट सप्लाई में चला गया, पर वो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए एप्लीकेबल है। अब मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं। मैंने घर पे कंस्ट्रक्शन किया हूं, एक रूम बनाई है और मैंने बुलाया पेंटर को, उसको बोला भाई पेंटिंग करके दे देना, पूरी रूम प्रॉपरली मेरे को कर देना, तू ही पेंट लेके आ जा, तू ही वार्निश लेके आ जा, तू ही सारा स्पिरिट विरिट लेके आ जा, ब्रश वश लेके आ जा। तो वो बोला ठीक है साहब मैं लेके आ जाता हूँ। तो अब उसने पेंटिंग कर दी मेरे रूम की, तो वो किया है तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गई। तो ये वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में आ गया। कंपोजिट सप्लाई टेबल का भी था, कंपोजिट सप्लाई ये पेंटिंग का भी है, पर दोनों में फर्क क्या हो गया कि कंपोजिट सप्लाई जो टेबल का था वो मूवेबल प्रॉपर्टी का था, इसके लिए उसका जो रेट ऑफ टैक्स है वो हमारे को कंपोजिट सप्लाई की डेफिनेशन के हिसाब से देखना है, क्योंकि कंपोजिट सप्लाई के अंदर अगर हम गए तो उसका रेट निकलेगा प्रिंसिपल सप्लाई के बेसिस पे, और अगर हम वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में चले गए तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में सेपरेट शेड्यूल एंट्रीज मिलेंगे, सेपरेट रेट ऑफ टैक्स मिलेंगे, और उस हिसाब से इसका हमारा टैक्स का परसेंटेज निकलेगा। तो मेरे ख्याल से सब लोगों को यहाँ पर बहुत क्लियरली ध्यान में आ गया होगा कि कंपोजिट सप्लाई पहले हमको देखना है, फिर वो कंपोजिट सप्लाई अगर मूवेबल प्रॉपर्टी का है तो कंपोजिट सप्लाई के हिसाब से टैक्स लगेगा, जिसमें प्रिंसिपल सप्लाई क्या है वो देखना है। कंपोजिट सप्लाई अगर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में चला गया तो फिर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के शेड्यूल एंट्रीज देखने पड़ेंगे और फिर उस हिसाब से टैक्स रेट निकालना पड़ेगा। इसको मैं और भी आगे सिंप्लीफाई करके समझा दूंगा। अब वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट को क्या किया है कि वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट ये सर्विस बोल दिया है, उसको सेक्शन 7 जो स्कोप ऑफ सप्लाई है उसके अंदर शेड्यूल एंट्री 2 के अंदर 6A के अंदर डाल दिया है कि ये सर्विसेज में जाएगा, और सर्विसेज में जब चला जाएगा तो वो जो रेट ऑफ टैक्स है, जो भी गुड्स यूज हुए हैं वो एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में है, उसका कुछ नहीं रहेगा। इररिस्पेक्टिव ऑफ द रेट हमको निकालना पड़ेगा सप्लाई सर्विसेज के हिसाब से, वैल्यू भी उसके हिसाब से, और गुड्स का जो कंपोनेंट है उसके लिए वो भी हमारे लिए ज्यादा मायने नहीं रहेगा, क्योंकि बाय डीमिंग फिक्शन वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट को सर्विसेज में ऐड कर दिया है। जब वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट को सर्विसेज में ऐड कर दिया है तो फिर सर्विसेज का वैल्यू निकालने का सेक्शन अलग है, सर्विसेज का टाइम अलग है, सर्विसेज का प्लेस का अलग है, और सर्विसेज का रेट ऑफ टैक्स अलग है। तो टाइम, वैल्यू एंड रेट ये सारे के सारे सर्विसेज के हिसाब से आएंगे। कंपोजिट सप्लाई के अंदर चेंज हो सकता है जो मूवेबल प्रॉपर्टी का है। मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर प्रिंसिपल सप्लाई जिस चीज का है उस हिसाब से रेट लग सकता है। अब मैं तुम्हारे को और एक सिंपल एग्जांपल दे देता हूं। मैंने टीवी खरीदी, दुकान से मैं टीवी लेके आ रहा हूं, उसको बोला भाई तू भी इंस्टॉलेशन कर देना, तू ही ट्रांसपोर्टेशन कर देना। ₹1,00,000 का टीवी लिया हूं, वो बोला चलो साहब मैं 5,000 रुपए में सब ट्रांसपोर्टेशन भी कर दूंगा, आपके घर पे आके इंस्टॉलेशन कर दूंगा। तो 1,05,000 रुपए के अंदर मेरे को टीवी गिरा। अब वो इनवॉइस बनाया, 1,00,000 रुपया इंस्टॉलेशन वगैरह सब डाला, 1,05,000, 1,05,000 पे उसने मुझे 18% जीएसटी लगाया। तो ये मूवेबल प्रॉपर्टी थी टीवी, इसमें सर्विसेज भी आ गई ट्रांसपोर्टेशन की, इसमें टीवी की भी वैल्यू आ गई। तो रेट ऑफ टैक्स कैसे लगा? गुड्स के हिसाब से। जो ट्रांसपोर्टेशन था, जो इंस्टॉलेशन था, वो
गुड्स के वैल्यू में चला गया, और गुड्स ये टीवी है तो इसके लिए 18% रेट ऑफ टैक्स में चला गया। इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर हम चले गए, ये वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो फिर वो कौन सी प्रॉपर्टी बन रही है, कौन से सर्विसेज हम दे रहे हैं, उस हिसाब से इसका रेट ऑफ टैक्स लगेगा। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ रेट ऑफ गुड्स, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सेपरेट टैक्स रेट लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो यहां पर अब हम चलते हैं कि व्हाट इज मीन बाय इमूवेबल प्रॉपर्टी, क्योंकि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी बनती है तो टैक्स रेट अलग है, मूवेबल प्रॉपर्टी बनती है तो टैक्स रेट अलग हो सकते हैं। तो टर्म इमूवेबल प्रॉपर्टी ये डिफाइन नहीं की गई है जीएसटी के अंदर, जनरल क्लॉजेस एक्ट के हिसाब से देखना पड़ेगा। और यहाँ पर लैंड, बेनिफिट अराइज आउट ऑफ लैंड, थिंग्स अटैच्ड टू द अर्थ एंड परमानेंट फास्टन टू द अर्थ, ये सारे की सारे इमूवेबल प्रॉपर्टी में आती है। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी की जब डेफिनेशन हम देखते हैं तो इसके अंदर इमूवेबल प्रॉपर्टी में इंटीग्रल पार्ट हो जाता है बिल्डिंग, और उसके साथ में उसके लैंड्स यानी थिंग्स अटैच्ड टू द अर्थ, इसके अंदर सिविल स्ट्रक्चर्स भी आ जाएंगे। जब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में इमूवेबल प्रॉपर्टी को अगर हम देखेंगे तो थिंग्स अटैच्ड टू द अर्थ, हेलो हेलो हेलो, बोलिए। आवाज आ रही है ना मेरी? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है आवाज। हाँ, क्योंकि हमारे इधर लाइट गई है तो मैं जस्ट देख रहा था कि कहीं वाईफाई तो नहीं गया। नहीं ओके, आ रही है। चलो चलो, थैंक यू। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, थिंग्स अटैच्ड टू द अर्थ एंड परमानेंटली फास्टन टू द अर्थ, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी में जाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि जितने भी एआरस है, जितने भी हाई कोर्ट्स के जजमेंट्स है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स है, या टैक्स अथॉरिटीज का माइंडसेट है, उनका माइंडसेट ये है कि आप इमूवेबल प्रॉपर्टी बना रहे हो तो हम आपको आईटीसी नहीं देंगे। फिर वो यही बोलते हैं कि आप इमूवेबल प्रॉपर्टी बना रहे हो तो हम ये चीजें देखेंगे, आपको आईटीसी नहीं देंगे। फिर जब सप्लाई यानी सेल साइड आ जाता है तो सेल साइड में भी वही प्रश्न आ जाता है कि आप इमूवेबल प्रॉपर्टी बना रहे हो तो हम आपको वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में डाल देंगे, नहीं तो आपको हम कंपोजिट सप्लाई में। तो हमको यहाँ पर बहुत ध्यान से देखना है कि जब हम सप्लाई कर रहे हैं तो सप्लाई के अंदर टैक्स अथॉरिटीज का ये रहता है कि आप इमूवेबल प्रॉपर्टी का सप्लाई कर रहे हो या मूवेबल का सप्लाई कर रहे हो। जहां पर रेट ऑफ टैक्स ज्यादा है वो वहां पर अपने ट्रांजैक्शंस को लेके जाएगा। आप एआरस के लिए गए और वो ये बोलेगा कि नहीं नहीं, ये यहाँ पर मूवेबल प्रॉपर्टी बन रही है, 18% लग रहा है, आप इधर डालो। और हम अगर आईटीसी का जजमेंट मांगने जाते हैं तो आईटीसी के अंदर भी वो देखता है कि आप क्या इमूवेबल प्रॉपर्टी ले रहे हो या मूवेबल ले रहे हो, तो वो डायरेक्ट बोलता है कि आप इमूवेबल प्रॉपर्टी में जा रहे हो, मैं आईटीसी नहीं दूंगा। तो लीगल झगड़ा कहाँ हो रहा है ये सब लोगों ने ध्यान में देना बहुत जरूरी है। जब मैं सप्लायर हूं, मैं कॉन्ट्रैक्टर हूं, अगर मैं काम कर रहा हूं, वो कंपोजिट सप्लाई है और उसके अंदर मैं ये बोलता हूं कि ये वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है और मेरा रेट ऑफ टैक्स 12% आना चाहिए, तो अथॉरिटीज क्या देखेगी कि ये वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं होना चाहिए, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी में नहीं बैठ रहा है, ये तो प्लांट एंड मशीनरी का है, तो आपको तो ये इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, ये मूवेबल प्रॉपर्टी बन रही है, तो ये कंपोजिट सप्लाई हो गया है। अब ये कंपोजिट सप्लाई के अंदर मैं आपको हायर रेट ऑफ टैक्स यानी प्रिंसिपल प्री सप्लाई के बेसिस पे टैक्स लगाऊंगा। ऐसे झगड़े अपने को आगे मिलेंगे। तो आगे के जब एआरस पढ़ेंगे तो आप सबको ये ध्यान में देना बहुत जरूरी है, व्हाट इज मीन बाय इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर दो पार्ट है, एक है लैंड और एक है बिल्डिंग। और बिल्डिंग के अंदर सिविल स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, बिल्डिंग के अंदर कॉम्प्लेक्स आ जाता है। तो ये सारी चीजें अपने को ध्यान में रखनी पड़ेगी कि व्हाट इज मीन बाय इमूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी भी कहीं डिफाइन की नहीं गई है जीएसटी एक्ट में, जनरल क्लॉजेस एक्ट के हिसाब से जाना पड़ेगा और वहां बोला है एक्सेप्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब मैं आपको एक
सिंप्लीफाई तरीके से बता दूं, मैंने मशीन खरीदी, मशीन के नीचे मैंने सीमेंट का फाउंडेशन लगाया, क्योंकि जिसके ऊपर मैं मशीन इम्बेड कर रहा हूं, फिक्स कर रहा हूं। अब ये मैंने कॉन्ट्रैक्ट दिया हूं कॉन्ट्रैक्टर को कि भैया तू मेरे को वो मशीन फिक्स करके दे दे। उसने वो काम किया, तो टैक्स अथॉरिटीज ये बोलेगी कि ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है। हम ये बोलेंगे कि नहीं नहीं नहीं, ये प्लांट एंड मशीनरी का फाउंडेशन है, ये मूवेबल है, मेरे कैपिटल असेट प्लांट एंड मशीनरी के है, मुझे आईटीसी मिलना चाहिए। वो बोलेंगे कि नहीं नहीं नहीं, आपको नहीं मिलेगा। अब अगर मेरा वो मूवेबल प्रॉपर्टी का है, मुझे वो आईटीसी मिलना चाहिए, अब मैं कॉन्ट्रैक्टर हूं, मैंने वो काम किया हूं, मैंने 1 लाख रुपए के अंदर वो फाउंडेशन बना दिया, तो मेरे लिए ये कंपोजिट सप्लाई तो हुआ, पर ये वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट हुआ क्या? क्योंकि वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में वो इमूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। मेरे ख्याल से सब लोगों को यहां पर मैटर ध्यान में आ रहा है क्या? मैं काम कर रहा हूं फाउंडेशन का, रेसिपिएंट जो है, जो वो चीजें ले रहा है मुझसे सर्विसेज, वो उसको प्लांट एंड मशीनरी में कैपिटलाइज कर रहा है, वो बोलता है कि ये मूवेबल प्रॉपर्टी, और मैं ये बोलता हूं कि ये मेरा वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी का। तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई एम पुटिंग इन फ्रंट ऑफ यू कि सप्लायर एक पार्टी हो गया, एक रेसिपिएंट एक पार्टी हो गया। सप्लायर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के सर्विसेज दे रहा है, रेसिपिएंट उसको मूवेबल प्रॉपर्टी ट्रीट कर रहा है। मैं ये बोल रहा हूं कि मेरा ये इमूवेबल प्रॉपर्टी का कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि मैंने फाउंडेशन बना के दिया प्लांट एंड मशीनरी का, तो ये बोलता है कि ये प्लांट एंड मशीनरी का फाउंडेशन मेरा मूवेबल प्रॉपर्टी है, मैंने इसको बिल्डिंग में कैपिटलाइज नहीं किया हूं। तो इस केस के अंदर क्या होगा, अभी बड़ा इंपॉर्टेंट झगड़ा शुरू हो जाएगा। फ्रॉम सप्लायर पॉइंट ऑफ व्यू इट इज अ इमूवेबल प्रॉपर्टी, सो इट्स अ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, और वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट होने के नाते मैंने 18% लगा दिए। अब रेसिपिएंट के लिए वो प्लांट एंड मशीनरी मान लो 28% का आइटम था, उसने बोला कि आप फाउंडेशन बना दो इसका, मैंने फाउंडेशन बना दिया, मैंने 1 लाख रुपए का उसको पेमेंट कर दिया, और मैंने यहाँ कैपिटलाइज कर दिया अंडर मूवेबल प्रॉपर्टी। नाउ व्हाट विल बी द थिंग? टैक्स अथॉरिटीज क्या बोलेंगे कि ये तो मूवेबल प्रॉपर्टी बन रही है, ये आप इसको रेट ऑफ टैक्स 18% वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में नहीं डाल सकते। तो ऐसे झगड़े आगे आपने को देखने को मिलेंगे, तो वो भी आपने को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे जो चीजें हमने डिस्कस की, ये सारी की सारी मुझे एक बैकग्राउंड मटेरियल आपको देना था कि कैसे रेट ऑफ टैक्स निकालना है, और अब मैं इसको बड़े सिंपल तरीके से कुछ टेस्ट फॉर्मेट में आपको बताता हूं कि हाउ टू डिटरमाइन टैक्स ऑन दी मूवेबल प्रॉपर्टी एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। क्योंकि अगर हमारे को ध्यान में आ गया कि कंपोजिट सप्लाई वो है, और वो अगर मूवेबल का है तो कैसे टैक्स रेट निकालना है, कंपोजिट सप्लाई है, इमूवेबल का है तो कैसे टैक्स रेट निकालना है। तो बड़े ही ध्यान से ये जो हम अब डिस्कस कर रहे हैं, आई एम समिंग अप ऑल द थिंग्स, और एक सिंपल भाषा में एक टेस्ट बता रहा हूं। तो व्हाट इज द फर्स्ट टेस्ट? सबसे पहले ये देखो कि जो ट्रांजैक्शन हो रही है ये कंपोजिट सप्लाई है क्या। तो कंपोजिट सप्लाई होने के लिए टैक्सेबल सप्लाई चाहिए दोनों, उसमें प्रिंसिपल सप्लाई हमको फाइंड आउट करना है। तो 2 टैक्सेबल सप्लाईज अगर आ गए, एक रेट ऑफ टैक्स आ गया, तो वो कंपोजिट सप्लाई के अंदर चला जाएगा। तो अगर वो कंपोजिट सप्लाई यस है तो यहां पर हमारी टेस्ट फुलफिल हो गई। तो सेकेंड टेस्ट क्या है? फिर उसी ट्रांजैक्शन को मुझे देखना है कि वो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का है क्या। मतलब मैं रूम की पेंटिंग करा रहा हूं तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मैं टेबल की पेंटिंग करा रहा हूं, वो मूवेबल प्रॉपर्टी है, तो ये वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो ये अगर यस है तो मैं इसको आगे जाके देखूंगा कि चलो मैं रूम की पेंटिंग कर रहा हूं तो ये वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो मैं आगे जाके सर्विसेज का रेट देखूंगा कि जो कि वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का है। अगर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, मेरा टेबल का कॉन्ट्रैक्ट है पेंटिंग का, तो यहां पर वो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की टेस्ट फेल हो जाती है। फिर हमको आगे वापस आना पड़ेगा कंपोजिट सप्लाई के टेस्ट पे।
कंपोजिट सप्लाई है, पेंट भी वही ला रहा है, वार्निश भी वही ला रहा है, पेंटिंग कर रहा है। हमारे पास दो एग्जाम्पल है, एक है टेबल का एग्जाम्पल और एक है रूम का एग्जाम्पल। तो रूम ये इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गई, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी होने से ये वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब टेबल के इसके अंदर वो मूवेबल प्रॉपर्टी है, तो मूवेबल प्रॉपर्टी रहने के कारण फिर से मुझे कंपोजिट सप्लाई के टेस्ट में आना पड़ेगा। फिर कंपोजिट सप्लाई में मुझे ये देखना है कि ये जो मैं मूवेबल प्रॉपर्टी का काम कर रहा हूं उसमें प्रिंसिपल सप्लाई क्या है। तो प्रिंसिपल सप्लाई मेरा क्या है, पेंट। तो पेंट इज माय मेन सप्लाई। तो पेंट के हिसाब से फिर ये पूरे ट्रांजैक्शन के ऊपर टैक्स लगेगा। पेंट का जो रेट है, मान लो पेंट के ऊपर 18% है, तो फिर वो 18% में जाएगा। अब मैं रूम बना रहा हूं, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गई, ये मैं इसका पेंटिंग कर रहा हूं, तो ये इमूवेबल प्रॉपर्टी का वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट होने से ये सर्विस हो गई, और सर्विस होने से मुझे शेड्यूल 2 में जाना पड़ेगा। शेड्यूल 2 के अंदर जाके 6A में जाना पड़ेगा। 6A के अंदर अगर रेट ऑफ टैक्स मान लो उसका 18% है, तो 18% आ गया। और वही अगर मैं गवर्नमेंट को सप्लाई करता हूं, मैं ये रूम बना रहा हूं गवर्नमेंट के लिए, तो गवर्नमेंट के लिए मुझे शेड्यूल रेट यहाँ पर 12% का आएगा, क्योंकि उसकी शेड्यूल एंट्री अलग है। अगर मैं टेबल बना रहा हूं, अगर मैं ये गवर्नमेंट के ऑफिस में बना रहा हूं टेबल, तो टेबल इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी, वो कंपोजिट सप्लाई में जाएगा, वो 18% में ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रिंसिपल एलिमेंट जो है वो पेंट है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डिस्कस हियर, कंपोजिट सप्लाई है, फिर वो किसी को भी हो, गवर्नमेंट को हो या नॉन गवर्नमेंट को हो, तो कंपोजिट सप्लाई में प्रिंसिपल सप्लाई निकालना है, वो हिसाब से रेट लगा। वही अगर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में चला गया, तो फिर वो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के शेड्यूल एंट्री ढूंढो, उसके अंदर देखो क्या रेट ऑफ टैक्स है और वो हिसाब से टैक्स लगाओ। आई थिंक आई हैव कवर्ड हियर कि कंपोजिट सप्लाई पहले हमको देखना है, फिर वो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है क्या वो देखना है, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के टेस्ट से मालूम पड़ेगा। अगर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है तो फिर कंपोजिट सप्लाई में जाना है और फिर प्रिंसिपल सप्लाई से रेट लगना है। तो वंस अ कॉन्ट्रैक्ट बिकम अ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी का, तो फिर प्लेस ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, ये सारे प्रिंसिपल्स चेंज हो जाएंगे, क्योंकि वो सर्विसेज में चला जाएगा। तो टू सम अप, there are two main principle of composite supply. One is principal supply and the second is the predominant intention. So the importance is lost when it become a works contract as to find out the correct classification of rate of tax. क्योंकि works contract होते ही वो services में चला जाएगा, वहां पर principal supply नहीं ढूंढना है, वहां पर हमको predominant intention नहीं ढूंढना है, हमको जाके सीधा schedule entry देखना है। और ये अगर हम फेल हो गए कि वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं है और बाद में असेसमेंट में मालूम पड़ा, बाद में जाके मालूम पड़ा, तो कंप्लीट स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा और जीएसटी पे फर्क पड़ जाएगा। सो माय हम्बल रिक्वेस्ट इज दैट कि कोई भी क्लाइंट आपके पास में आता है तो शांति से पहले देख लो कि वो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है क्या या वो कंपोजिट सप्लाई है। तो कंपोजिट सप्लाई में भी कौन सा है, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का है तो क्या रेट ऑफ टैक्स है, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो फिर क्या रेट ऑफ टैक्स है। एंड दिस शुड बी द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एवरी कॉन्ट्रैक्ट। तो सारे कॉन्ट्रैक्ट ध्यान से पढ़े, ध्यान से चेक करे और उस हिसाब से ही इसका जीएसटी निकाले। तो कंपोजिट सप्लाई है, कंपोजिट सप्लाई में वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है, यही स्टार्टिंग पॉइंट है। और अगर हमने ये शुरुआत में ही केयर ले लिया तो हमारे क्लाइंट्स को कभी तकलीफ नहीं होगी, टैक्स अथॉरिटीज को कभी हमारे को इशू नहीं आएगा। तो अब हमारा एग्जाम्पल फिर से आते हैं कि बिल्डर ने स्कीम लॉन्च की, उसने कार दिया बुकिंग के ऊपर फ्लैट के साथ में, तो वो 75 लाख रुपए चार्ज कर रहा है। तो वेदर इट इज अ कंपोजिट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट,
ये हमको ढूंढना है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि वो कार इज नॉट अ पार्ट ऑफ द वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, फ्लैट इज अ पार्ट ऑफ द वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। तो ये दोनों अलग अलग ट्रांजैक्शन हो गई, तो दोनों का अलग रेट ऑफ टैक्स निकाले और वो हिसाब से इसको भरे, क्योंकि कंपोजिट सप्लाई में ये नेचुरली बंडल में भी नहीं आती। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि ये हमको सब चीजें ध्यान में रखनी है। और अगर वो नहीं सुनता है बिल्डर और फिर भी वो 75 लाख में दे ही देता है, तो फिर अब अगर वो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट बोल के कार के ऊपर भी वही रेट लगाता है जो फ्लैट का लगा रहा है, तो आगे चल के इसके ऊपर इश्यूज आ सकते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि ऐसे अगर कोई स्कीम आती है जो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के साथ में और भी कोई चीजें इसमें इंक्लूड होती है, तो प्लीज सी वेदर इट इज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और नॉट। तो कार इज नॉट अ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इट इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी। तो ये ध्यान में रखे। अब बहुत ही सिंपल वे से, ग्राफिकल वे से मैं ये पूरा प्रेजेंट कर रहा हूं आपके सामने। देन वी विल कंक्लूड आवर लीगल डिस्कशन एंड देन वी विल गो फॉर सुप्रीम कोर्ट्स एंड हाई कोर्ट जजमेंट, जो सिंपली वे में आपको ध्यान में आ जाएंगे और अपने को शेड्यूल एंट्रीज भी जाने हैं आगे, जो हमको फटाफट समझ में आ जाएंगे। तो टेस्ट क्या है कंपोजिट सप्लाई फाइंड आउट करने की, कि वो सप्लाई होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए, वो सप्लाई के डेफिनेशन में सेक्शन 7 में आना चाहिए, वो टैक्सेबल पर्सन ने करना चाहिए। तो टैक्सेबल पर्सन डिफाइन है जिसका 20 लाख के ऊपर टर्नओवर गया, 40 लाख के ऊपर टर्नओवर गया गुड्स के केस में। टू अ रेसिपिएंट, रेसिपिएंट तो कोई भी हो चलेगा। फिर कंसिस्टिंग ऑफ 2 एंड मोर सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2 के ऊपर टैक्सेबल सप्लाई यहाँ पर चाहिए। अब ये मार्क का AR है, इसके अंदर डेवलपमेंट ऑफ प्लॉट्स के ऊपर GST लगाया है। प्लॉट इज अ इमूवेबल प्रॉपर्टी, प्लॉट इज अ एग्जाम सप्लाई, इट इज ऑफ लैंड, उसमें सर्विसेज आ गई, तो वो कंपोजिट सप्लाई के डेफिनेशन में जाता ही नहीं। तो ये AR आगे लीगली फेल होएगा, पर आज तो जजमेंट दे दिया AR में, अब आगे देखेंगे इसका क्या होता है। फिर विच शुड बी अ नेचुरली बंडल, तो नेचुरली बंडल हमने देखा कि ये आर्टिफिशियल बंडलिंग नहीं चाहिए, नेचुरली चाहिए। फिर ये दोनों के कंजक्शन में ईच अदर साथ में सप्लाई होना चाहिए, जैसे कार के साथ में उन्होंने इंश्योरेंस और वारंटी दे दिया, नेचुरली बंडल्ड है। फिर ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में चाहिए कि भाई ये हरदम होता है और हर एक जन कर सकते हैं, नेचुरली है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में है तो चलेगा। एंड वन ऑफ देम इज द प्रिंसिपल सप्लाई, तो जैसे ही प्रिंसिपल सप्लाई मालूम पड़ गया प्रीडोमिनेंट इंटेंशन से, तो इस हिसाब से फिर हमको टैक्स रेट निकालना है उसका। अब हमारा जो एक एग्जांपल को मैं थोड़ा टिल्ट कर देता हूं, कार नहीं दे रहा है बिल्डर, बिल्डर कार पार्किंग स्पेस दे रहा है, तो वन टाइम चार्जेस ले रहा है बिल्डर, वन टाइम चार्जेस कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लैट। तो ये क्या होगी ट्रांजैक्शन, तो ये जरूर नेचुरली बंडल्ड है, कार स्पेस दे रहा है विच इज अ सर्विस, वन टाइम चार्जेस, कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लैट ये भी दे रहा है, दोनों के मिल के पैसे ले रहा है, तो ये कंपोजिट सप्लाई हो गया। कंपोजिट सप्लाई होने के बाद में ये वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का हो गया, क्योंकि फ्लैट का है, स्पेस भी वही इसमें आ रही है, तो ये वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में आने से ये कंपोजिट सप्लाई हो गया और इसका टैक्स लग गया। फिर सेल ऑफ बिल्डिंग हो रहा है, मूवेबल फर्नीचर के साथ में दे रहे, तो मूवेबल फर्नीचर है, ये नेचुरली बंडल्ड हो सकता है, तो बिल्डिंग के साथ में दे रहे हैं। पर वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड मैंने यहाँ पर यूज किया है, सेल ऑफ बिल्डिंग। अब ये बिल्डिंग मेरी OC की बाद में की है, कंप्लीट है, यहाँ पर मैंने कंस्ट्रक्शन फ्लैट मांगा वर्ड यूज किया था, सो अंडर कंस्ट्रक्शन वर्ड यूज किया है। अंडर कंस्ट्रक्शन इज व्हाट, इट इज रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, बट सेल ऑफ बिल्डिंग, सेल ऑफ बिल्डिंग इज एग्जम्प्ट, क्योंकि सेल ऑफ बिल्डिंग ये एग्जम्प्ट रहेगा, शेड्यूल 3 के अंदर जाएगा। तो एग्जम्प्ट सप्लाई एक हो गया, और मूवेबल फर्नीचर इज अ टैक्सेबल सप्लाई, तो दिस इज अ टैक्सेबल सप्लाई, दिस इज एग्जम्प्ट सप्लाई। तो अब क्या हो गया, दिस कैन नॉट गो इनटू कंपोजिट सप्लाई बिकॉज बिल्डिंग आफ्टर OC इज अ एग्जम्प्ट सप्लाई, फर्नीचर इज अ टैक्सेबल, इट इज नॉट अ कंपोजिट सप्लाई। कंपोजिट सप्लाई नहीं रहने से क्या हुआ, बिल्डिंग की वैल्यू अलग करो, उसके ऊपर GST मत भरो, मूवेबल फर्नीचर है वो टैक्सेबल है, उसके ऊपर टैक्स भरो। फिर फ्रेट चार्जेस सेपरेटली चार्ज इन द इनवॉइस,
बिफोर डिलीवरी ऑफ गुड्स कंपोजिट सप्लाई में चले जाएगा तो आगे उसको टैक्स लग जाएगा। कंपोजिट सप्लाई में नहीं भी जाता है तो भी डीमिंग फिक्शन से सेक्शन 15C में वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर फ्रेट को ऐड किया है, तो फ्रेट की जो भी केसेस आपको मिलेगी आपको वहां कंपोजिट सप्लाई का टेस्ट यूज ही नहीं करना है, क्योंकि सेक्शन 15C में वैल्यू ऑफ सप्लाई में डीमिंग फिक्शन से डाल दिया है कि वो बिफोर डिलीवरी है तो फ्रेट विल बिकम पार्ट ऑफ द गुड्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमको ध्यान में रखना है। नाउ वी मूव टू द टेस्ट ऑफ द वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। सिंपल फॉर्म में कंक्लूड करते हैं कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट होना, चलो बिल्डर हमारे को अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट दे रहा है तो हमने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, वो बिल्डिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन का है तो वो भी आ गया वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के डेफिनेशन में। बाद में फैब्रिकेशन, कंप्लीशन, इरेक्शन, इंस्टॉलेशन, फिटिंग, इंप्रूवमेंट, मॉडिफिकेशन, रिपेयर्स, मेंटेनेंस, ये भी आ गए, रिनोवेशन भी आ गए, अल्टरेशन भी आ गया। और वो किस चीज का चाहिए, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी का चाहिए, उसके अंदर गुड्स के एलिमेंट चाहिए। प्योर सर्विस अगर है कि मैं अगर कंपाउंड वॉल बना के ले रहा हूँ, गुड्स में ला रहा हूँ और मैंने कॉन्ट्रैक्टर को बोला कि तू सिर्फ लेबर सप्लाई कर, वो सिर्फ लेबर सप्लाई कर रहा है तो वो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, क्योंकि वो सर्विसेज का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, उसको अलग रेट ऑफ टैक्स लगेगा। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के लिए गुड्स का उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी है। तो ये टेस्ट थी हमारी। और सबसे मेन है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो लॉट्स ऑफ इश्यूज आर देयर कि कौन से इमूवेबल प्रॉपर्टी बनेगी, कौन सी नहीं बनेगी, तो आगे के एआरस भी देखेंगे, हम केसेस भी देखेंगे। तो लैंड और बिल्डिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर आती है। तो क्रक्स हमारे लिए झगड़े का बनने वाला है सिविल स्ट्रक्चर। लैंड तो बहुत क्लियर है, इमूवेबल प्रॉपर्टी में जाएगा, बिल्डिंग भी इमूवेबल प्रॉपर्टी में जाएगा। तो टैक्स अथॉरिटी जो झगड़ा कर रही है वो कर रही है सिविल स्ट्रक्चर के ऊपर। जैसा हमने देखा प्लांट एंड मशीनरी, जैसे मैं इलेक्ट्रिकल और इंजीनियर इलेक्ट्रिकल पोल बना रहा हूँ, उसका टेंडर निकाला हूँ, ट्रंकी प्रोजेक्ट है, तो ये वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट होगा क्या सेपरेटली चार्ज होगा। और ट्रंकी प्रोजेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल पोल, इलेक्ट्रिकल पोल मुझे रास्ते के किनारे पूरे पोल डाल के देना है, तो पोल ये मूवेबल प्रॉपर्टी हो गई, पर मुझको जमीन में लगा लगा के देना है इलेक्ट्रिकल लाइन के लिए, तो अब ये वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट होगा या सेपरेटली चार्ज करना पड़ेगा। क्योंकि एमएससीबी है, बहुत सारे बड़े बड़े कंपनीज है, ये टेंडर निकालती है, टेंडर के अंदर पूरा लिखती है कि आपको 100 पोल डालना है, इतनी वायर यूज करना है, इतना एल्यूमिनियम, इतना कॉपर, इतना ये, इतना सीमेंट। ट्रंकी प्रोजेक्ट है, तो अब ये ट्रंकी प्रोजेक्ट वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का प्रोजेक्ट है या ये कंपोजिट सप्लाई है, फिर उसमें मुझे देखना है कि पोल मुझे बैठाना है, तो पोल का रेट ऑफ टैक्स क्या है वो हिसाब से लगेगा या ये वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से लगेगा। दिस इज आवर क्वेश्चन। तो आगे हम इसके ऊपर भी स्टडी करेंगे। तो अब फटाफट देखते हैं हम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स जो इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिलेटेड आए थे, क्योंकि कोर्ट के अंदर भी केसेस उसी के लिए गई है कि क्या रेट ऑफ टैक्स रहना चाहिए। तो त्रिवेणी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, व्हाट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड प्लांट एंड मशीनरी। तो ये आया था झगड़ा कि हम कोर्ट ने ऑब्जर्व ये किया कि while determining whether an article is a permanently fastened to anything attached to the earth, the intention as well as the function of the fastening has to be ascertained from the facts and circumstances of the each case. तो ये जजमेंट क्या था, त्रिवेणी का प्लांट एंड मशीनरी का फाउंडेशन बनाया था, तो उन्होंने बोला कि ये फाउंडेशन है तो ये प्लांट एंड मशीनरी में जाना चाहिए। तो टैक्स अथॉरिटीज बोल रही कि नहीं नहीं नहीं, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इट्स अ बिल्डिंग पार्ट, ये सिविल स्ट्रक्चर है, ये बिल्डिंग में जा रहा है, तो इसके ऊपर हम आपको आईटीसी भी नहीं देंगे या आपको ये इमूवेबल प्रॉपर्टी, वैसे तो ये एक्साइज का मैटर है पुराना जजमेंट का। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि नहीं नहीं नहीं, आपको इंटेंशन देखना है और वो जो चीज बनाई है उसका असरटेन करना है कि वो किस चीज के लिए बनाई। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि ये प्लांट एंड मशीनरी बैठाने के लिए बनाया था, तो it become part of the plant and machinery, so it's become a capitalized under that head, so it's become a part of the movable property। तो ऐसे भी हमको आगे ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर टेंडर निकलता है कि भाई आप हमको इलेक्ट्रिकल पोल बना के दो,
हम बोलेंगे कि इसमें सीमेंट है, रेती है, तो यार ये वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं हो गया, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है तो अलग रेट। और हम ये सोचेंगे कि नहीं ये तो इलेक्ट्रिकल पोल का काम है, तो ये तो मूवेबल प्रॉपर्टी है, तो ये कंपोजिट सप्लाई में प्रीडोमिनेंट इंटेंशन वो निकालो। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा कि आपको ईच फैक्ट्स ऑफ द केस देखना पड़ेगा और उस हिसाब से डिटरमाइन करना पड़ेगा। फिर इलाहाबाद सॉलिड एंड करेक्ट इंजीनियरिंग का केस है, वहां पर भी यही झगड़ा था कि इमूवेबल प्रॉपर्टी है या प्लांट एंड मशीनरी है। तो यहाँ पर भी उन्होंने यही बोला कि जो इमूवेबल प्रॉपर्टी का डेफिनेशन है वो आपको देखना चाहिए, और इमूवेबल प्रॉपर्टी कैन नॉट any property cannot be termed as a immovable property for the following reason। यानी टैक्स अथॉरिटीज ये कर रही कि हर चीज को इमूवेबल प्रॉपर्टी बना रही है, पर यहाँ पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने बोला ऐसा नहीं हो सकता, हर एक प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं हो सकती। आपको ये देखना जरूरी है द प्लांट इन क्वेश्चन आर नॉट पर से द इमूवेबल प्रॉपर्टी, क्योंकि यहाँ पर इंजीनियरिंग का कॉन्ट्रैक्ट दिया था, ये जो प्लांट बन रहा है ये अटैच टू द अर्थ नहीं माना जा सकता सेक्शन 3 के हिसाब से। जो फाउंडेशन बन रहा है प्लांट एंड मशीनरी का, ये उसको फिक्स करने के लिए बन रहा है, उसके स्टेबिलिटी के लिए बन रहा है, वाइब्रेशन फ्री करने के लिए बन रहा है। तो ये जो प्लांट है उसका इंटेंशन ये है कि प्लांट एंड मशीनरी को ठीक से लगाना। इट कैन नॉट बी सेड कि ये हम रोड कंस्ट्रक्शन जैसा काम कर रहे हैं और ये सेटअप हम कर रहे हैं प्लांट एंड मशीनरी के लिए कर रहे हैं, तो ये परमानेंटली फास्टन भी अगर होती है तो फाउंडेशन होता है ये, और आप इसको बाहर निकाल सकते हो, भले ही वो फिक्स किया है पर नट एंड बोल्ट निकाल दिया तो वो निकल जाएगा, तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं होगी। इट इज अ प्लांट एंड इट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट हमारे क्लाइंट दे रहे हैं या ले रहे हैं वो हमको देखना जरूरी है कि वो मूवेबल प्रॉपर्टी का है या इमूवेबल प्रॉपर्टी का है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट लेवल के ऊपर, जहां पर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट को भी जीएसटी में अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट में स्प्लिट किया गया है। तो कंपोजिट सप्लाई हमने देख लिया, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट देख लिया, अब वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की भी स्प्लिटिंग करी है। तो क्या करी है, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में भी ओरिजिनल वर्क्स को स्प्लिट किया है। ओरिजिनल वर्क इसके लिए किया है कि ऑल न्यू कंस्ट्रक्शंस आर ओरिजिनल वर्क, क्योंकि आगे जब हम शेड्यूल एंट्री देखेंगे तो शेड्यूल एंट्री के अंदर ओरिजिनल वर्क्स के शेड्यूल एंट्रीज अलग है, उसका टैक्स रेट अलग है। तो ये सर्विसेज की शेड्यूल एंट्री 9954 में दिया गया है व्हाट इज मीन बाय ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट। तो ऑल पार्टिसिपेंट्स आप सबको ये ध्यान में देना जरूरी है कि अगर कोई वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट आता है कंपोजिट सप्लाई का, तो ये ओरिजिनल वर्क्स का है क्या वो आप देखें, वो इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में ये देखना जरूरी है कि ओरिजिनल वर्क्स अगर रेसिडेंशियल यूनिट का है तो वो एग्जम्पशन में जाता है। यानी क्या, मैं अगर खुद का घर बना रहा हूँ, उमेश शर्मा खुद का घर बना के ले रहा है और ये मैं सिंगल रेसिडेंशियल हाउस है, मैंने इसको कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट दिया है किसी और को, तो ये सामने वाले को मुझे ये बोलना पड़ेगा कि भाई तू ओरिजिनल वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तू रेसिडेंशियल हाउस का कर रहा है, तो ये एग्जम्प्ट है। तो व्हाट इज मीन बाय ओरिजिनल, तो ऑल न्यू कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। अगर उमेश शर्मा का घर है उसका रिपेयर्स कर रहा है तो दैट विल नॉट बी ओरिजिनल वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, तो मुझे वो सामने वाला टैक्स लगा के देगा। फिर सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट का भी यहाँ पर डिफाइन किया है कि व्हाट इज मीन बाय सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट। ये प्रिंसिपली रेसिडेंशियल पर्पस के लिए एक फैमिली के लिए होना चाहिए। मैं 10 अपार्टमेंट की बिल्डिंग बना रहा हूँ और उसको सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट बोलूंगा तो नहीं चलेगा, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। फिर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट विद द गवर्नमेंट अथॉरिटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट अथॉरिटी के साथ में अगर हम काम करते हैं तो उसका टैक्स रेट शेड्यूल एंट्री के हिसाब से अलग रहता है। तो व्हाट इज मीन बाय गवर्नमेंट अथॉरिटी, तो उसमें पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट्स यानी प्राइवेट, जो गवर्नमेंट के कंपनीज है जिसको हम बोलते हैं बीएसएनएल, बीएसएनएल इज अ गवर्नमेंट कंपनी, तो वहां पर 90% तक उनका शेयर होल्डिंग चाहिए, पार्टिसिपेंट इन द इक्विटी और कंट्रोल, ये या फिर उनके फंक्शन इंटरेस्टेड है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के, उसके लिए 234W कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या 234G कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पंचायत के हिसाब से वो एस्टेब्लिशमेंट होनी चाहिए। यानी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी आ गए,
इसमें महानगर पालिका आ गई, इसमें ग्राम पंचायत आ गई, इसमें गवर्नमेंट कंपनी जहां पे 90%। अब बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से गवर्नमेंट कंपनीज हैं जहां 90% के अबव शेयर होल्डिंग है, तो हमको ये देखना जरूरी है। जैसा रेलवेज का कॉन्ट्रैक्ट आता है तो वहां पर गवर्नमेंट का शेयर होल्डिंग है, पर वहीं पे समझो अगर इसका कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है, कोई गवर्नमेंट की, समझो अपन बैंक्स, अब बैंक्स के अंदर हम ये तो मानते हैं कि वो पब्लिक लिस्टेड कंपनीज है बैंक्स, अब वो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है क्या, तो वो शेयर होल्डिंग कितनी है बैंक्स के अंदर, गवर्नमेंट का 90% के ऊपर शेयर है क्या, वो देखना बहुत जरूरी है। तो ही वो बैंक्स के जो टेंडर निकल रहे हैं वो गवर्नमेंट अथॉरिटीज के निकल गए ये माना जाएगा। जिस बैंक के अंदर गवर्नमेंट का होल्डिंग नहीं है 90% के ऊपर तो वो नॉर्मल हो जाएंगे, उसके लिए रेट ऑफ टैक्स अलग आ जाएगा। फिर हमको ये भी देखना जरूरी है कि कंस्ट्रक्शन सर्विसेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंस्ट्रक्शन सर्विसेज ये एक स्पेशल एंट्री बना दी। कंस्ट्रक्शन सर्विसेज में बिल्डिंग हो गई, साइट हो गई, इंस्टॉलेशन हो गए, ये सारे ऐड कर दिए। भले ही इसको डिफाइन नहीं किया है पर कंस्ट्रक्शन सर्विसेज को एक अलग ही शेड्यूल एंट्री डाल दी है। जैसे यहां पर हम देखेंगे बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, बिल्डर्स एंड डेवलपर को स्पेशल शेड्यूल एंट्री डाल दी है और उनको बोल दिया है कि आप कंस्ट्रक्शन सर्विसेज दे रहे हो। बहुत चतुराई से ये ड्राफ्ट किया है कि कंस्ट्रक्शन सर्विसेज, भले ही वो कंपोजिट कॉन्ट्रैक्ट है, वो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है, पर उसको शेड्यूल एंट्री डाल दी कंस्ट्रक्शन सर्विसेज, और वो हिसाब से इसका टैक्सेबिलिटी लाया है। नहीं तो क्या होता था, इसको अगर वो कंपोजिट सप्लाई बोलते थे, प्रीडोमिनेंट इंटेंशन निकालते थे, तो वो फ्लैट का निकलता था, फ्लैट इज एग्जाम सप्लाई, तो फिर वो वापस लिटिगेशन आता था। एलएनटी में जो वैट के अंदर लिटिगेशन आया था वही जीएसटी में आता था। तो पर यहाँ पर उन्होंने क्या किया, बिल्डर्स एंड डेवलपर्स को कंस्ट्रक्शन सर्विसेज में डाल दिया। कंस्ट्रक्शन सर्विसेज में डाल के उनको लैंड कॉस्ट 1/3 माइनस करने को बोल दिया, और बचा हुआ कंस्ट्रक्शन सर्विसेज है, आप उस हिसाब से जीएसटी भरो। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है जो चीज हमको ध्यान में रखनी चाहिए। फिर बाद में वो जो शेड्यूल एंट्री थी वो तो हमने देखी 6A की, वो शेड्यूल एंट्री है कंपोजिट सप्लाई ऑफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, ये डिफाइन भी कर दिया गया है, और उस हिसाब से 5B के अंदर भी उसको ले लिया है कि कौन सा शेड्यूल एंट्री 2 के अंदर कंपोजिट सप्लाई ऑफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट आएगा। तो यहाँ पर 5B मतलब हमारा शेड्यूल 2, जहां पर बिल्डर्स एंड डेवलपर्स भी टैक्स भरते हैं, तो वो हिसाब से यहाँ पर शेड्यूल एंट्री में लिया। अब हम देखते हैं लिस्ट ऑफ एग्जम्प्टेड वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। यहां से अब हमारा शेड्यूल एंट्री की पढ़ाई शुरू हो रही है, और मैं यहाँ पर सिंप्लीफाई वे में जो पहले हमने डिस्कस कर लिया है उस हिसाब से बताता हूं कि क्या हो रहा है। अब आ रही है हमारी चैप्टर 99, इसमें नील रेट ऑफ टैक्स है। कौन से सर्विसेज पे, तो शब्दों के ऊपर थोड़ा ध्यान दो। कंपोजिट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यहां पर कंपोजिट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वर्ड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर कंपोजिट सप्लाई ऑफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट वर्ड नहीं है, क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज। तो आप कंपोजिट सप्लाई कर रहे हो, गुड्स एंड सर्विसेज कर रहे हो, उसमें जो वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स है वो नॉट मोर देन 25% है, यानी जो गुड्स हम दे रहे हैं वो 25% के ऊपर नहीं है। कौन से एक्टिविटी के लिए, जो भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस है उनके फंक्शंस है उसके रिलेटेड हम काम कर रहे हैं, तो यहां पर नील रेट ऑफ टैक्स आएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने साफ सफाई का काम लिया हो महानगर पालिका का, कोविड है, मैं सैनिटाइजर भी ला रहा हूं, मैं हाइड्रोक्लोराइड भी ला रहा हूं, वो मैं छिड़क रहा हूं, रास्तों के ऊपर छिड़क रहा हूं। अब इसमें मेरा लेबर सप्लाई ज्यादा है, लेबर इज 80%, और मटेरियल कितना यूज हो रहा है 20%। और मैं ये एक्टिविटी किसके लिए कर रहा हूं, मैं ये एक्टिविटी सैनिटाइजेशन हेल्थ मेंटेन करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का काम कर रहा हूं। तो ये केस में क्या होगा, 20% के नीचे सप्लाई है मेरा गुड्स का, तो ये शेड्यूल एंट्री में मुझे जाना पड़ेगा, उसके वजह से मुझे नील रेट ऑफ टैक्स आएगा। और यहाँ पर उन्होंने दिया है गुड्स एंड सर्विसेज, तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। तो बेस्ट एग्जांपल है सैनिटाइजर,
ऑफ क्लीनिंग सर्विसेज इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी बोल सकते हो या महानगर पालिका भी बोल सकते हो। तो ये जो भी सर्विसेज होती है, जो गवर्नमेंट के फंक्शंस हैं महानगर पालिका के, उसके हिसाब से अगर करेंगे तो वो है। और इसके लिए नरसिंहमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी का कर्नाटका का भी आप जज AR यहाँ पर यूज कर सकते हो। और ये जो AR है उसमें दिया है कि इट इज नॉट एप्लीकेबल टू द सब कॉन्ट्रैक्टर, यानी यहाँ पर आगे जब वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में हम जाएंगे टैक्सेशन में, तो प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्टर कौन है और वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर कौन है ये भी ध्यान दो। तो यहाँ पर दिया गया है कि हम जो सर्विसेज दे रहे हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को दे रहे हैं, तो ये सर्विसेज यहाँ पर नील रेट से आएगी, जहां पर सर्विसेज का कंपोनेंट ज्यादा है, गुड्स का कंपोनेंट 25% के नीचे है। तो सैनिटाइजेशन का एग्जांपल हमने ले लिया था। फिर आते हैं 9954 शेड्यूल एंट्री के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट दिया है, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट of construction, erection, installation of a civil structure or original work of beneficiary-led housing or enhancement of housing। तो ये केस में क्या है, नील रेट ऑफ टैक्स। तो टैक्स प्लानिंग पर्पस यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सर्विसेज वर्ड की गई है। तो जैसा मैंने आपको बताया, प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट अगर है, मेरा घर बनाने के लिए मैंने कॉन्ट्रैक्ट दिया है, और रेसिडेंशियल हाउस बनाने के लिए इंडिविजुअल रेसिडेंशियल हाउस PMGY के अंदर भी अगर वो आता है, एक सिविल स्ट्रक्चर बनाने का काम अगर हम कर रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर, और वहां पर सिर्फ प्योर लेबर है, तो यहाँ पर नील रेट ऑफ टैक्स आएगा। तो अगर इसको अगर थोड़ा सा यूज करना है प्लानिंग के लिए, कैसा यूज कर सकते हैं, कोई बिल्डर है, सारे के सारे अफोर्डेबल हाउस बना रहा है वो, और अगर उसको कॉन्ट्रैक्ट देना है तो उसने कॉन्ट्रैक्ट देना चाहिए लेबर का अलग से। लेबर का अलग से कॉन्ट्रैक्ट देगा तो नील रेट ऑफ टैक्स लगेगा, क्योंकि ये यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर वो कवर हो जाएगा। और अगर हमने उसको विथ मटेरियल दिया तो ये शेड्यूल एंट्री से वो बाहर चला जाएगा, और फिर वो 12% के इसमें चला जाएगा। तो मटेरियल हम खुद परचेस करें और सिर्फ सर्विसेज का काम दे। फिर नेक्स्ट शेड्यूल एंट्री है सर्विसेज बाय वे ऑफ प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट। इसके अंदर ओरिजिनल वर्क ऑफ रेसिडेंशियल हाउस, जैसा मेरा उमेश शर्मा का मेरा घर बन रहा है, मैंने कंस्ट्रक्शन का प्योर लेबर का कॉन्ट्रैक्ट दिया है, मटेरियल सीमेंट सब मैं ला रहा हूँ, और उसको बोला कि तू सिर्फ सर्विसेज दे, तो ये भी नील रेट ऑफ टैक्स रहेगा। तो टैक्स प्लानिंग पर्पस के लिए अगर हम घर बांध रहे हैं तो हमने खुद ने सीमेंट रेती लेना चाहिए, और सामने वाले को बोलना चाहिए भैया तू सिर्फ लेबर का कॉन्ट्रैक्ट कर, तो उससे वजह से GST नहीं लगेगा। अब आते हैं हम टैक्सेबल सर्विसेज के ऊपर। तो व्हाट आर द सर्विसेज विच आर टैक्सेबल, और ये शेड्यूल एंट्री हर एक ने ध्यान से पढ़ना चाहिए। यहाँ पर वर्ड दिया है 995 के अंदर कंस्ट्रक्शन सर्विसेज, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कंपोजिट सप्लाई वर्ड नहीं है, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन सर्विसेज ऑफ मतलब उसके रिलेटेड, यानी हम उस कॉम्प्लेक्स का, उस सिविल स्ट्रक्चर का काम कर रहे हैं। शेड्यूल एंट्री पढ़ते वक्त आप ध्यान में देना ऑफ वर्ड को और टू वर्ड को, क्योंकि टू मतलब उस कंसर्न पर्सन को दे रहे हैं, और ऑफ मतलब वो पर्टिकुलर टाइप ऑफ सर्विसेज हो गई। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वगैरह अगर हम कर रहे हैं, जो हमारे को ये सर्विसेज है, तो 1 अप्रैल 2019 के बाद में लैंड वैल्यू का डिडक्शन करके, जैसे कमर्शियल कॉम्प्लेक्स कोई बिल्डर बना रहा है तो वो कंस्ट्रक्शन सर्विसेज दे रहा है, 1/3 वैल्यू ऑफ लैंड उसका डिडक्ट हो जाएगा, और वो 12% रेट ऑफ टैक्स, यानी 18% है, 1/3 माइनस किया लैंड का तो 6% माइनस होता है। तो आज जो बिल्डर्स एंड डेवलपर जो कंस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, वो 12% से टैक्स भर रहे हैं, तो वो कंस्ट्रक्शन सर्विसेज बोल के भर रहे हैं। भले ही रेट ऑफ टैक्स 18% है, पर 1/3 माइनस होने के बाद इफेक्टिव 12% आता है। यहाँ पर कंपोजिट सप्लाई और वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का नाम वर्डिंग मिसिंग है इस शेड्यूल एंट्री में। क्यों? क्योंकि झगड़ा नहीं चाहिए, बड़े चतुराई से उन्होंने डाल दिया है कि बिल्डर कंस्ट्रक्शन सर्विसेज दे रहा है, तो ये डीमिंग फिक्शन से उसको शेड्यूल 2 में डाल दिया है, और उस हिसाब से इसका टैक्सेशन निकाला है। अब जब हम आगे चलते हैं
नेक्स्ट शेड्यूल एंट्री, तो यहां पर आपको वर्ड हर जगह मिलेगा कंपोजिट सप्लाई ऑफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। तो कंपोजिट सप्लाई ऑफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट मतलब दो और ज्यादा सर्विसेज है जो कंपोजिट सप्लाई हो रही है, और वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट मतलब वो इमूवेबल प्रॉपर्टी की हो रही है, और उसका रेट ऑफ टैक्स जो है 18% है। तो ये रेसिडुशियल एंट्री है, कहीं पे भी कुछ नहीं मिला तो 18% रेट ऑफ टैक्स लगना ही लगना है कंपोजिट सप्लाई ऑफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। अब हम आगे चलते हैं बहुत स्पेसिफिक सर्विसेज शेड्यूल एंट्रीज के ऊपर। ये है कंपोजिट सप्लाई ऑफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। हेलो, किसी की आवाज आ रही है? प्लीज म्यूट द माइक। हाँ है ना, 6 घंटे का था वो प्रेसिडेंट। हेलो, वो था नेक्स्ट भागवत प्लीज म्यूट जय प्राध्यापक सर। करंट का भागवत करंट का अध्यापक सर, अध्यापक सर को म्यूट करो। ओके, तो कंपोजिट सप्लाई ऑफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट ये 18% में जाता है, जो हमने देख लिया। तो सभी पार्टिसिपेंट नोट करें कि कंपोजिट सप्लाई ऑफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट कहीं पे भी नहीं मिला तो डायरेक्ट 18% रेट ऑफ टैक्स लगने वाला है। पर अगर हमने इसको आगे जाके देखा कि कंपोजिट सप्लाई ऑफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब वो इमूवेबल प्रॉपर्टी का कंपोजिट सप्लाई है एंड सप्लाई टू वर्ड है। हमने अगर स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, लोकल अथॉरिटीज को दिया है, उनका इरेक्शन और उसका रिपेयर और मेंटेनेंस का काम किया है, तो ये गवर्नमेंट रेसिपिएंट होगा, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड होगा। जैसे इरिगेशन का काम है, जैसा पीडब्ल्यूडी के काम है, कि मान लो कि अभी कोई एक छोटा सा सिविल कोर्ट बन रहा है, या नवी मुंबई के अंदर मान लो एयरपोर्ट बन रहा है, गवर्नमेंट के लिए एयरपोर्ट बना रहे हैं, या गवर्नमेंट का अगर कोई मान लो ब्रिज बना रहे हैं, तो रास्ते के ऊपर ब्रिज का काम कर रहे हैं, तो ये इमूवेबल प्रॉपर्टी बन रही है, या कनाल बना रहे हैं, ये डैम बना रहे हैं, तो ये सारे के सारे गवर्नमेंट को जा रहे हैं, वो 12% में जाएंगे। तो थोड़ा ध्यान से देखें और फिर उस हिसाब से यहाँ पर शेड्यूल एंट्री का यूज करें। फिर इसी शेड्यूल एंट्री में हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को भी यूज कर दिया है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे को भी किया है, डैम्स को यूज कर लिया है, इसको पाइपलाइन, वाटर ट्रीटमेंट, सिविल ट्रीटमेंट को भी यूज कर लिया है। फिर नेक्स्ट एंट्री में हम आते हैं, ये भी कंपोजिट सप्लाई ऑफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की है, बाय वे ऑफ है। यहाँ पर बाय वे ऑफ है, यानी हमने ये सर्विसेज दी है, कौन सी? कंस्ट्रक्शन, इरिक्शन, रिपेयर्स, मेंटेनेंस ऑफ रोड, ब्रिज, टनल। यानी रास्ते ऑलरेडी बन गए थे, पर मैं उसको रास्ते का सुधारने का काम किया, ब्रिज का और टनल का सुधारने का काम किया हूं, तो वो भी सारे के सारे 12% में जाएंगे। तो यहाँ पर फिर वो रेसिपिएंट जो है यहाँ पर डिफाइन नहीं किया है, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट वगैरह यूज नहीं किया है, पर यहाँ पर स्पेसिफिकली बोला है ब्रिज, रोड, टनल, टर्मिनेशन, ट्रांसपोर्टेशन, जो जनरल पब्लिक के लिए है। मतलब क्या हुआ, जो IRDA है, जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स रहते हैं, वो भी 12% से रेट ऑफ टैक्स लगाएंगे। यहाँ पर JNU रिन्यूअल राजीव गांधी आवास योजना को भी आ गया है। अब ये PMAY के लिए भी ये स्कीम यूज हो जाती है, क्योंकि वहां पर भी ये कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं। तो यहाँ पर PMAY के भी कॉन्ट्रैक्ट्स आ गए, यहाँ पर अर्बन मिशन के भी कॉन्ट्रैक्ट्स आ गए, इकोनॉमिकल वीकर क्लास के आ गए, फिर यहाँ पर प्रधानमंत्री MIG इनका भी आ गया, लोअर इनकम के ग्रुप्स के आ गए। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का इफिलिएंट ट्रीटमेंट का कई प्लांट में काम होगा, पर अगर ये फैक्ट्री के अंदर ही होगा तो 12% में जाएगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट है कि किसी के कंपनी में भी अगर ये काम हो रहा है पोल्यूशन कंट्रोल का तो 12% में जाएगा। फ्यूनरल ब्यूरल अगर सेरिमिनेशन का यानी शमशान भूमि का काम कर रहे हैं तो वो 12% में जाएगा। फिर कोई बिल्डिंग बना रहे हैं जो अंडर सेक्शन 12AA यानी ट्रस्ट का है, और ये कुकिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिड डे मील्स के लिए कर रहे हैं, वहां पर वो एक्टिविटी कैरी ऑन हो रही है। वो बिल्डिंग ओन बाय एन एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर 12AA विच इज यूज्ड फॉर कैरिंग आउट एक्टिविटी ऑफ प्रोवाइडिंग सेंट्रलाइज्ड कुकिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, मिड डे मील्स बाय स्पॉन्सर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, तो वो 12% में जाएगा। तो
तो यहाँ पर जैसे वो रसोई घर वगैरह बनाएंगे गवर्नमेंट के लिए, तो मिड डे मील के तो वो 12% में है। फिर नेक्स्ट शेड्यूल एंट्री है कंपोजिट सप्लाई ऑफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट बाय वे ऑफ कंस्ट्रक्शन इरेक्शन 2, यानी इनको अगर हम देते हैं, किसको दे रहे हैं हम? रेलवेज को देते हैं, सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट को देते हैं, तो ये 12% में जाएगा। तो यहाँ पर सप्लायर कोई भी हो सकता है, पर रेसिपिएंट रेलवे या सिंगल हाउस वाला चाहिए, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी का चाहिए, इसके अंदर रिपेयर्स मेंटेनेंस सर्विसेज नहीं आती, और यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर भी आ जाता है जो अफोर्डेबल हाउसिंग वाला काम करता है 50% अबव के अंदर, वो भी 12%। एग्रीकल्चर, फ्रूट प्रोसेसिंग, स्टोरिंग, अगर गोडाउन बना रहे हैं तो वो भी आते हैं। इसका AR भी है जो हम आगे देख लेंगे। तो अलग अलग स्कीम दिए हैं। 60 स्क्वायर मीटर के नीचे के हाउस की भी यहाँ पर ले लिया है उन्होंने। फिर यहाँ पर कोल्ड स्टोरेज वगैरह बना रहे हैं तो वो भी ले लिया है। फूड ग्रेन का स्टोरेज का है, वेयर हाउसिंग का, तो वो भी 12% में डाला है। फिर नेक्स्ट एंट्री है कंपोजिट सप्लाई ऑफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, उनको हम दे रहे हैं कंस्ट्रक्शन कमीशनिंग ऑफ सिविल स्ट्रक्चर अदर देन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अदर देन यानी सिविल स्ट्रक्चर फॉर एनी अदर ओरिजिनल वर्क प्रीडोमिनेटली मेंट फॉर यूज अदर देन कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड प्रोफेशन। यानी मैं गवर्नमेंट का काम कर रहा हूं, मैं स्कूल बना के दे रहा हूं गवर्नमेंट को, तो ये 12% में जाएगा। अगर मैं गवर्नमेंट के लिए कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना के दे रहा हूं तो वो 18% में जाएगा। तो यहाँ पर उन्होंने दिया है कि अगर आप एजुकेशनल के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल का काम कर रहे हो तो वो जो भी सर्विसेज है ये 12% में जाएगी गवर्नमेंट को अगर देंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये गवर्नमेंट के साथ में अगर कोई वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो बड़े ध्यान से हमने करना चाहिए। फिर नेक्स्ट है कंपोजिट सप्लाई ऑफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, जहां पर हम अर्थ वर्क का काम कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। इरिगेशन का काम कर रहे हैं और वहां पे 75% से भी ज्यादा वैल्यू ऑफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है। मतलब क्या हुआ, मेरा जो काम है इरिगेशन है, मैं डैम बना रहा हूं, तो मुझे यहाँ पर बहुत बड़ा एक गड्ढा बनाना है जिसमें पानी आएगा, तो मैं वहां की रेती सब बाहर निकाल रहा हूँ, मट्टी, और दूसरी जगह लेके जा रहा हूँ बुलडोजर से, वहां से निकाल के, तो ये मैं गवर्नमेंट को ये काम सर्विसेज दे रहा हूँ, तो ये 5% में जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट रेट ऑफ टैक्स है इसमें। सोमो मोहितो जॉइंट वेंचर्स का महाराष्ट्र का ही अर्थ वर्क का AR है, तो यहाँ पे अर्थ वर्क को डिफाइन नहीं किया गया है, पर मोस्ट प्रोबेबली ये सिंप्लीफाई वे से यही होता है कि टेंडर निकलता है और टेंडर में लिखा जाता है कि अर्थ वर्क, तो वो हमने यहाँ पर ध्यान से देना चाहिए। तो ये 5% के अंदर जाएगा, पर यहाँ पर 75% से भी ज्यादा काम होना चाहिए सर्विसेज का, जिसके अंदर हमारे को वो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में जाए। अगर अर्थ वर्क कम है 75% से अगर नीचे चला गया अर्थ वर्क, तो वो ऊपर 12% में चला जाएगा, तो थोड़ा ध्यान रखना है। फिर कंपोजिट सप्लाई के एसोसिएटेड सर्विसेज अगर हम दे रहे हैं, जैसा ये ऑफशोर ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन E&P के लिए, तो 12% ये ऑयल एंड गैस वालों के लिए काम का है, हमारे लिए ज्यादा काम को नहीं आएगा। फिर कंपोजिट सप्लाई ऑफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के सर्विसेज दे रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है शेड्यूल एंट्री, जो सब लोग ध्यान दें। यहां पर दिया है कि सब कॉन्ट्रैक्टर टू द मेन कॉन्ट्रैक्टर, कोई सब कॉन्ट्रैक्टर को भी काम देता है, मेन कॉन्ट्रैक्टर कौन से आइटम का, आइटम 3 और 6 ऑफ अबव, तो बहुत स्पेसिफिक लेवल पे उन्होंने दिया है कि प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्टर और सब कॉन्ट्रैक्टर भी आ जाएगा, उसको भी 12% का ही गवर्नमेंट का रेट लगेगा, और इसके अंदर सारे कंडीशंस फुलफिल करने पड़ेंगे। श्री कंस्ट्रक्शन का AR भी है, जहां पर उन्होंने बोला है कि रेलवेज का भी अगर काम करते हैं तो भी वो सब कॉन्ट्रैक्टरशिप में आ जाएगा। तो ऊपर जो शेड्यूल एंट्रीज हमने देखी थी उसके अंदर के कुछ शेड्यूल एंट्रीज को भी सब कॉन्ट्रैक्टरशिप का एप्लीकेबल हो जाएगा। मान लो मैं डैम बना रहा हूं, तो डैम बनाने का काम मुझे मिला है और मैंने वो किसी और को भी दिया हो सब कॉन्ट्रैक्ट, तो वो 12% में ही जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सब लोग ध्यान रखें। फिर यहाँ पर हर एक का स्पेसिफिक एंट्री दिया है, शेड्यूल एंट्री, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, फिर से यहाँ पर सब कॉन्ट्रैक्ट और मेन कॉन्ट्रैक्टर का वर्डिंग यहाँ पर दे दिया है। तो ये भी अर्थ
वर्क्स के लिए है वहां पर भी 5% लगेगा। तो जहां जहां सब कॉन्ट्रैक्टर का वर्ड नीचे सेपरेट शेड्यूल एंट्री में है वहीं पे ये एप्लीकेबल होगा, हर जगह एप्लीकेबल नहीं होगा। जैसे पंतप्रधान आवास योजना के अंदर बिल्डर काम कर रहा है, बिल्डर ने कॉन्ट्रैक्टर को काम दिया है तो वो 12% में होगा, पर वो कॉन्ट्रैक्टर ने आगे और किसको दिया है तो वो 12% में नहीं जाएगा। तो वो हमको ध्यान में देना है कि गवर्नमेंट्स के काम है, गवर्नमेंट्स के काम को प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्टर को 5% लग रहा है, अर्थ वर्क का है, उसने सब कॉन्ट्रैक्टर दिया है तो वो भी 5% में जाएगा। फिर सर्विसेज बाय वे ऑफ हाउस कीपिंग, प्लम्बिंग, कारपेंटिंग अगर वो भी कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक वर्क्स इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेटर के थ्रू कर रहे हैं, जैसा अभी हम नए नए ऐड देखते हैं टीवी के अंदर कि आपका वेबसाइट के ऊपर बुकिंग कर दो, एसी सुधार देंगे वगैरह, वो सब कर देंगे, तो वो 5% में जाता है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट ऑपरेटर के थ्रू, पर इसमें आईटीसी नहीं मिलता। फिर जो बच गए कंस्ट्रक्शन सर्विसेज है, रेसिडेंशियल एंट्री है, 18% में जाएगा। तो कंपोजिट सप्लाई में वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है तो वो भी रेसिड्यू 18 है, कंस्ट्रक्शन सर्विसेज है, रेसिडुअल एंट्री है तो वो भी 18 है। तो ये सब लोगों ने ध्यान में रखना है। फिर इंजीनियरिंग इंस्टॉलेशन के, बायोगैस के, सोलार का भी यहाँ पर बड़ा इशू है, क्योंकि सोलार में सबसे बड़ा बवाल हुआ। सोलार में पहले 5% लगे, फिर बाद में 18% लगे, फिर उसमें अब नया शेड्यूल एंट्री आ गया कि 70% इज सर्विस, 30% इज गुड्स, ऐसा वाइस वर्सा। तो वो सोलार का अगर हम काम कर रहे हैं तो 18% सर्विसेज के ऊपर टैक्स लगेगा। तो पार्टी सभी को मुझे यहाँ पर ये बताना है कि गवर्नमेंट ने कंपोजिट सप्लाई के टेस्ट को बाजू में रखते हुए, प्रीडोमिनेंट इंटेंशन को बाजू में रखते हुए स्पेशली शेड्यूल एंट्रीज बना दिए, और बायोगैस प्लांट का है, सोलार का है तो वो 18% में जाएगा। ऐसा डीमिंग फिक्शन से भी काम किया है। जैसे रेस्टोरेंट सर्विसेज को 5% विदाउट आईटीसी डाल दिया, बाय डीमिंग फिक्शन से उन्होंने कंपोजिट सप्लाई को डिफाइन कर दिया शेड्यूल एंट्री। तो ये भी बहुत ध्यान में रखना है अपने को सबको। तो ये सारे शेड्यूल एंट्रीज थे टैक्सेबल एंड एग्जम्प्ट्स के। अब एट द एंड within 10 minutes I will sum up all the ARs and the Supreme Court's judgment. तो ABB इंडिया का AR है, वेस्ट बंगाल का AR है, इनको टेंडर मिला था टेक्नोलॉजी सिस्टम्स अपडेट करने का, रोबोटिक्स का था, डेटा मैनेजमेंट का था, रेलवेज का टेंडर था। तो उन्होंने एप्लीकेंट ने क्या बोला कि ये मेरा टेक्निकल ऑफर है, मैं अनेक्सर डी भी जोड़ रहा हूँ, यहाँ पर डिजाइनिंग भी करना है, इंजीनियरिंग केबलिंग सर्विसेज दे रहा हूँ, मेरा करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट है, इसके अंदर कुछ सर्विसेज मेरे इमूवेबल के भी है, तो मैक्सिमम सर्विसेज मेरे टेक्नोलॉजी के है। तो क्या होना चाहिए? तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा, AR में क्या दिया है? द एप्लीकेंट इज मेकिंग अ कंपोजिट सप्लाई ऑफ अ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, और उसको शेड्यूल एंट्री के हिसाब से 12% रेट ऑफ टैक्स लग जाएगा। हालांकि ABB इंडिया ये बोल रहा था कि मेरा टेक्नोलॉजी का काम है, मैं वो सॉल्यूशन प्रोवाइडर हूँ, आई एम नॉट अ इमूवेबल प्रॉपर्टी क्रिएटर, आई एम अ इलेक्ट्रिकल, आई एम अ रोबोटिक, आई एम अ डेटा मैनेजमेंट सिस्टम। पर इसको इमूवेबल प्रॉपर्टी बन रही है क्योंकि आप वहां पर इलेक्ट्रिकल पोल लगाओगे, टेलीफोन वायर्स लगाओगे, तो थोड़ा भी यहाँ पर इमूवेबल प्रॉपर्टी का काम हो गया, तो पूरा के पूरा वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में डाल दिया। अब इसके ऊपर आगे बवाल हुआ है, इसको और आगे हाईकोर्ट में केस गई है ABB इंडिया की। यानी यहाँ एप्लीकेंट बोल रहा है कि मैं मूवेबल प्रॉपर्टी कर रहा हूँ, और यहाँ पर AR बोलता है कि मैं यहाँ पर इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रीट कर रहा हूं। तो ये करोड़ों रुपए का टैक्स इंपैक्ट वाला झगड़ा है, ये सब लोगों ने यहाँ पर ध्यान देना जरूरी है। Why this topic is important? Because of this, कि कहाँ रेट ऑफ टैक्स लगना चाहिए। तो विहान एंटरप्राइजेस का है, इनको ट्रंक की प्रोजेक्ट मिला था, कॉन्ट्रैक्ट मिला था, वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मल्टीपल इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट भी दे दिए थे, और उसके जो नेचर है वो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का नेचर है क्या नहीं ये बताओ, ऐसा था। और उस कॉन्ट्रैक्ट में सोलर प्लांट भी बनाना था, तो सोलर प्लांट बनाने के नाते
उसके अंदर उन्होंने कहा कि ये 70% मेरा डीमिंग फिक्शन से गुड्स का वैल्यूएशन एंड 30% से मेरा सर्विसेज का वैल्यूएशन ये शेड्यूल एंट्री आई है। तो ये अमेंडमेंट मुझे लग के 8.9% रेट ऑफ टैक्स से मेरा काम होना चाहिए, ऐसा उसने पूछा। अब एआर ने क्या किया कि आप ये सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे हो, फैब्रिकेशन इंस्टॉलेशन का काम कर रहे हो, इसके अंदर एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी का वर्ड यूज किया है। अब जो भी ट्रंकी प्रोजेक्ट्स में कॉन्ट्रैक्ट में आप कर रहे हो, यहाँ पर मल्टीपल इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए हैं और सबका अलग अलग अमाउंट और कॉन्ट्रैक्ट का दिया है। तो उसमें से कुछ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के हैं जो आपके बाकी इसमें नहीं आ सकते हैं, तो आप वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट को अलग करो और ये ट्रंकी प्रोजेक्ट्स के अंदर गुड्स अलग करो, सर्विसेज अलग करो। और आपको ये देखना बहुत जरूरी है कि जो भी आप गुड्स दे रहे हो उस हिसाब से आपको देखना है, और जो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हो वो हिसाब से आपको निकालना है। तो ये पूरे केस के अंदर जो भी सप्लाई ऑफ मटेरियल वगैरह कर रहे हो, आपने अलग अलग आइडेंटिफाई करना है। और ये आपका रेवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड का कॉन्ट्रैक्ट है, which shall not be included in the value of works contract of civil substation and feeder bay। तो इन्होंने क्या किया कि आपको सोलर पे अलग से लगाना पड़ेगा, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट पे अलग से लगाना है, गुड्स के ऊपर अलग से लगाना है, सर्विसेज, यानी ट्रंकी बेसिस के प्रोजेक्ट को भी एआर वालों ने स्प्लिट कर दिया। नहीं, आप इसमें क्या कर रहे हो, सबस्टेशन बना रहे हो, फीडर बे बना रहे हो, ये सिविल वर्क है, तो ये वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से टैक्स लगाओ। बाकी सोलर का काम कर रहे हो वो अलग कॉन्ट्रैक्ट है, उसको अलग लगाओ। फिर उसके अंदर आप गुड्स भी दे रहे हो, उसको अलग करो। तो टैक्स अथॉरिटी कुछ भी डिसीजन दे रही है, कंपोजिट सप्लाई को स्प्लिट करके भी दे रही है और उस हिसाब से टैक्स भरो ऐसा दे रही है। फिर एक वर्टिव इंजन एनर्जी का जजमेंट एआर है, यहां पर है कि वेदर एवरी कॉन्ट्रैक्ट वेयर सिविल वर्क इन्वॉल्व इज अ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं थोड़ा भी अगर सीमेंट रेती खड़ी सिविल वर्क करता हूं तो वो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में जाएगा क्या, क्योंकि वो अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं बन रही है, वो मूवेबल प्रॉपर्टी बन रही है, तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पर इनका यूपीएस इंस्टॉलेशन का था, इरेक्शन एंड इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग ऑफ यूपीएस था। तो एप्लीकेंट का काम है कि यूपीएस बनाना और वो सप्लाई करना, और अब वो एप्लीकेंट बोल रहा है मुझे एडवांस रूलिंग चाहिए कि मैं वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के सर्विसेज दे रहा हूँ क्या डीएमआरसी को। तो यहाँ पर एआर ने क्या बोला कि आप यूपीएस कर रहे हो, उसके साथ में फाउंडेशन भी बना रहे हो, और वो जो यूपीएस है वो फाउंडेशन के बगैर इंस्टॉल नहीं हो सकता। तो ये जो भी आप सर्विसेज दे रहे हो इसके अंदर सिविल भी आ रहा है, यूपीएस का भी काम आ रहा है। तो ये यूपीएस जो भी आप दे रहे हो, दिस इज वेरी फैक्ट that it does not become means this is very fact does not mean the UPS system becomes an immovable property, hence it is not a immovable property। तो यहाँ पर उन्होंने सही तरीके से एआर दिया कि फाउंडेशन ये आपका अलग हो रहा है, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी में नहीं आता, इसके लिए वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, ये कंपोजिट सप्लाई ऑफ यूपीएस का होगा, और यूपीएस का जो रेट है वो हिसाब से आपको टैक्स रेट भरना है। तो ये एक इम्पोर्टेंट था जो हमारे को यहाँ पर देखना चाहिए था, और ये एक अच्छा एआर है जहां पर हम रेफर कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्रिंसिपल एलिमेंट यूपीएस को माना गया और यूपीएस के हिसाब से रेट लगाया गया। तो हेंस दिस सप्लाई इज अ कंपोजिट सप्लाई एंड इट इज अ रेट एट द होल ऑफ यूपीएस रेट। अब कल्याण टोल का भी एआर है एमपी स्टेट का। यहाँ पर कल्याण वाला भी काम वही कर रहा है कि वो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट लिया है। अब वो ये चाह रहा है कि ये कंपोजिट सप्लाई ऑफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है या क्या रेट है, क्योंकि टेंडर इशू हुआ है। टेंडर के अंदर ये बोला है कि आपके पास ईच वैल्यू है, ईच आइटम है, उसमें सिविल कंस्ट्रक्शन भी है, तो ये होता है क्या। तो यहाँ पर अथॉरिटीज ने बोला कि टेंडर डॉक्यूमेंट जो है ये कंसोलिडेटेड है, यहाँ पर अलग अलग सप्लाई का दिया है, इंडिविजुअल रेट ऑफ टैक्स दिए है, तो आप इंडिविजुअल रेट से टैक्स भरो, सर्विसेज पे सर्विसेज का, गुड्स पे गुड्स का। तो ये कंपोजिट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा। वेरी स्ट्रेंज डिसीजन, वेरी स्ट्रेंज एआर, वन शुड नोट डाउन दिस।
देन वी कम डाउन टू विक्रम साराभाई स्पेस का, केरला का AR है, इसके अंदर वो विंड टनल बना रहे हैं, ट्रांसमेटिक विंड टनल, ट्रंक की प्रोजेक्ट है, तो ये वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में आएगा क्या? तो यहाँ पर AR ने बोला कि आप डिजाइन कर रहे हो, कमिश्निंग कर रहे हो, ट्रंक की प्रोजेक्ट बना रहे हो और ये आप गवर्नमेंट को सप्लाई कर रहे हो, ये वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन है। आप जो प्रीडोमिनेंट इंटेंशन का काम कर रहे हो, तो ये पूरा के पूरा कंस्ट्रक्शन फिटिंग इसमें ओरिजिनल वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है, तो ये 12% रेट ऑफ टैक्स से आपको टैक्स लगना चाहिए। हालांकि ये विंड टनल बना रहे थे, तो ये विंड टनल को भी इमूवेबल प्रॉपर्टी में डाल के उसको 12% रेट ऑफ टैक्स से डाला है, तो ऐसा भी AR यहाँ पर सामने आया है। फिर NR एनर्जी सॉल्यूशंस का है, यहाँ पर भी प्रिंसिपल सप्लाई, ये कंपोजिट सप्लाई का बोल रहे हैं, तो हमारे को 18% लगेगा क्या, वन कॉन्ट्रैक्ट में जाएगा। तो ये इंस्टॉलेशन टेस्टिंग ऑफ रिले एंड प्रोटेक्शन पैनल का काम कर रहे थे, जिसको SAS बोलते हैं, और ये अलग अलग साइट के ऊपर हम लगा के दे रहे हैं। तो यहाँ पर उन्होंने बोला कि हमने कॉन्ट्रैक्ट चेक किया, आपका 97.5 जो प्रोजेक्ट का वैल्यू है, ये आपका जो कंप्राइज हो रहा है वो गुड्स का है, और सिर्फ 2.5% जो है ये सर्विसेज का है। Thus, the supply of goods is the project and it should be levied as a 18%. Very strange AR. मेरा कंपोजिट सप्लाई है ऐसा मैं बोलता हूं, पर वो क्या बोल रहे हैं, नहीं 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 नहीं, आपके प्रोजेक्ट में 97% गुड्स है और 2.5% सर्विसेज है, तो 97.5 वैल्यू के ऊपर आप 18% लगाओ और 2.5 के ऊपर सर्विसेज लगाओ। तो ये बोलते हैं कि ये कंपोजिट सप्लाई की केस नहीं होती, ये वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की केस नहीं होती, यहाँ पर नो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन फिटिंग है, तो ये केस के अंदर आपको गुड्स के हिसाब से टैक्स लगाना है। तो यानी कंपोजिट सप्लाई में भी उन्होंने स्प्लिट कर दिया वैल्यू को। तो ऐसे भी ARs मिल रहे हैं, तो बड़े ध्यान से हमको करना चाहिए काम। फिर एफिल का है, ये प्लम्बिंग का कॉन्ट्रैक्ट है, ये अर्बन हाउसिंग के लिए, तो ये इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग का कॉन्ट्रैक्ट है, ये कंपोजिट सप्लाई में आ जाता है, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में आ जाता है, क्योंकि आप इमूवेबल प्रॉपर्टी का काम कर रहे हो, तो ये वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है, ऐसा यहाँ पर आया। फिर योगीराज पावर टेक का AR है, यहाँ पे LT ST OT जो इलेक्ट्रिकल लाइंस रहते हैं, ये नागपुर मेट्रो प्रोजेक्ट्स का काम है, तो यहाँ पर बोला है EPCG यानी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट है। ये कॉन्ट्रैक्ट जो भी है ये वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं, तो ये एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट होगा और वो हिसाब से रेट ऑफ टैक्स लगेगा। अब प्रिसिशन ऑटो रोबोटिक का AR है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। कार पार्किंग का सिस्टम इंस्टॉल किया था इन्होंने बिल्डिंग के अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट, सब लोग ध्यान से दो कि कार पार्किंग का सिस्टम लगाया, तो यहां पर वो टेस्ट आई है कि वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है कंपोजिट कॉन्ट्रैक्ट का क्या नहीं। तो यहां पर उन्होंने बोला कि ये जो भी डिस्कशन है ये कंपोजिट सप्लाई के डेफिनेशन में जरूर आ रहा है, पर ये इमूवेबल प्रॉपर्टी क्वालिफाई होती है तो ये वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो वेदर दैट इज अ इमूवेबल प्रॉपर्टी और नॉट, यू चेक इट एंड अकॉर्डिंगली इसके ऊपर लगाएं। तो यहाँ पर उन्होंने ओपिनियन दिया कि कार पार्किंग सिस्टम ये इमूवेबल प्रॉपर्टी हो रही है और उस हिसाब से इसके ऊपर टैक्स लगेगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट वाज फॉलोड हियर। देन EMC का AR है, यहाँ पर टावर को बनाना था, इसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन भी थे, अलग अलग लोडिंग अनलोडिंग ये भी था कि वो टावर्स को लेके जाना और वो साइट्स के ऊपर लगाना। तो यहाँ पर AR में ये बोला कि जो फ्रेट चार्जेस है, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है, ये सेपरेटली नहीं होंगे, ये आप इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट को आइडेंटिफाई करो और 18% भरो, कंपोजिट सप्लाई नहीं होगा। तो वेरी स्ट्रेंज AR, उन्होंने यहाँ पर सेपरेट फ्रेट और ट्रांसपोर्टेशन चार्ज आप कलेक्ट कर रहे हो तो वहां पर 18% अलग से लगाओ और टावर्स के लिए अलग से लगाओ, ऐसा यहाँ पर दिया। तो ऐसे भी ARs आते हैं। फिर RB कंस्ट्रक्शंस का AR है, अंडरग्राउंड पाइपलाइन का कर रहे हैं, तो ये वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का है, तो ओके कर दिया है AR के अंदर। फिर एक श्री कंस्ट्रक्शन का है, ये सब कॉन्ट्रैक्टर के लिए फेवरेबल है। ऑलरेडी हमने देखा था कि रेलवेज को हमने कॉन्ट्रैक्ट लिया है 12% का, तो सब कॉन्ट्रैक्टर को भी एप्लीकेबल होगा और 12% में सब कॉन्ट्रैक्टर भी जा सकता है।
फिर ये मार्क्यू का, ये डेवलप प्लॉट्स का हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। बड़ा अजीब है कि ये डेवलपमेंट सर्विसेज इमूवेबल प्रॉपर्टी में ले रहे हैं, प्लॉट को भी वो सेल ऑफ लैंड को पर भी जीएसटी लगा रहे हैं। तो ये कंपोजिट सप्लाई और टैक्सेबल सप्लाई का डेफिनेशन यहाँ पर फेल होने वाला है। तो ये मार्क्यू का भी आगे अपील में गए हैं, लेट्स सी क्या होता है। अब हम लास्ट में एक 5 मिनट में वैल्यूएशन का भी डिस्कस कर लेंगे कि वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे निकलेगा। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई कंपोजिट सप्लाई के वैल्यू से ही निकलेगा। सिर्फ फ्लैट्स के केस के अंदर 1/3 वैल्यू लैंड का माइनस होता है और सोलार के केस में 70 एंड 30% का किया है। बाकी पूरे की पूरे कॉन्ट्रैक्ट के वैल्यू के ऊपर ही टैक्स लगेगा। कहाँ पे डिविजिबल अगर किया है तो गुड्स को अलग करके, सर्विसेज अलग करके टैक्स लगेगा। तो वैल्यूएशन के ऊपर कोई ज्यादा डिबेट है नहीं। कंपोजिट सप्लाई में पूरे वैल्यू के ऊपर लगेगा। सिर्फ 2 ही जगह पे हमको ध्यान देना है, वो है बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के केस में और बाद में है सोलार्स के केस में। अब हम लास्ट में लेते हैं, जिस इज आवर लास्ट पार्ट ऑफ डिस्कशन, वो है इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन सप्लायर एंड रेसिपिएंट पर्सपेक्टिव। क्योंकि सप्लायर के लिए तो वो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है, वो टैक्सेबल है, तो उसको आईटीसी मिलेगा। पर रेसिपिएंट के लिए वो अलग हो सकता है, वो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट मूवेबल का है तो मिलेगा आईटीसी, इमूवेबल का है तो नहीं मिलेगा। तो एक छोटा सा चार्ट मैंने बनाया है, होप एवरीबॉडी विल अंडरस्टैंड इन अ सिंपल वे। तो यहाँ पर सप्लायर पर्सपेक्टिव, सप्लायर ने इमूवेबल प्रॉपर्टी का काम किया है तो उसके लिए ये वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज हो गए। तो सप्लायर को आईटीसी मिलेगा क्या? जरूर मिलेगा, अगर वो टैक्सेबल है तो। अगर एग्जम्प्ट में अंदर जाता है तो नहीं मिलेगा। रेसिपिएंट के लिए वो इमूवेबल प्रॉपर्टी बन रही है। मान लो मैंने एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम दिया है, वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का मेरा सप्लायर खुद है, तो वो काम हो रहा है, वो बराबर इमूवेबल प्रॉपर्टी बना रहा है, वो टैक्स लगा के देगा, उसको खुद को मिलेगा। पर मेरे लिए ये ऑफिस बिल्डिंग है, फॉर माई सेल्फ दिस इज माई ऑफिस बिल्डिंग, तो क्या होगा? तो ये मेरी इमूवेबल प्रॉपर्टी बन रही है, तो ये मैं कैपिटलाइज कर रहा हूँ ऑफिस बिल्डिंग में, तो मुझे आईटीसी नहीं मिलेगा। अब इमूवेबल प्रॉपर्टी का ही सप्लायर का कॉन्ट्रैक्ट है, ये वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में आता है, उसको टैक्सेबल है तो मिलेगा। पर मेरे लिए वो मूवेबल प्रॉपर्टी है, जैसे प्लांट एंड मशीनरी का फाउंडेशन, वो भले ही बोले कि ये वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है, इमूवेबल प्रॉपर्टी का है, वो अलग रेट ऑफ टैक्स लगाएगा वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, पर मैं ये बोलता हूं कि ये मेरा प्लांट एंड मशीनरी का फाउंडेशन है तो मुझे आईटीसी मिलेगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का अगर मैं काम ले रहा हूं तो सप्लायर के लिए वो इमूवेबल प्रॉपर्टी का हो सकता है, फॉर रेसिपिएंट इट मे बी अ मूवेबल प्रॉपर्टी, जो ये एग्जांपल है, और मुझे आईटीसी मिलेगा। और यहीं पे झगड़ा शुरू होने वाला है। टैक्स अथॉरिटीज यही करने वाली है कि आपने वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का बिल लिया है सामने वाले से, मतलब आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी का काम किया है, हम आईटीसी देंगे नहीं। सो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग डिबेट, ये सब लोग ध्यान में रखे आगे। अब इमूवेबल प्रॉपर्टी का ही काम किया है, ये वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का है, ये टैक्सेबल है, पर ये इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो पार्ट है ये मैंने P&L को बिल्डिंग रिपेयर्स में डाला है, आई हैव नॉट कैपिटलाइज इट, तो मुझे आईटीसी मिलेगा। बिल्डिंग रिपेयर्स 17(5) में ब्लॉक क्रेडिट में नहीं आते, ये सब लोग ध्यान में रखो। तो भले ही सामने वाले ने इमूवेबल प्रॉपर्टी का काम किया है, मैंने उसको कैपिटलाइज नहीं किया वो बिल्डिंग में, मैंने रिपेयर्स में डाला हूँ P&L को, तो मुझे आईटीसी मिलेगा। फिर आते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी, वो कंपोजिट कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, ये इट इज नॉट अ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, तो ये टैक्सेबल होगा सप्लायर के लिए, अगर टैक्सेबल है, एग्जम्प्ट है तो है, नहीं तो आईटीसी उसको नहीं मिलेगा। पर ये मूवेबल प्रॉपर्टी का काम मेरे लिए ये इमूवेबल प्रॉपर्टी बन रही है। जैसे मैंने बिल्डिंग बनाया, कैपिटलाइज किया, जैसे मैंने सीमेंट के ऊपर का फ्रेट, दुकानदार से मैंने 10 बोरी सीमेंट लिया, उसका उसने 5,000 रुपया लगाया, 500 रुपया फ्रेट लगाया, तो 10,500 का बिल मुझे आया। तो ये सप्लायर के लिए तो ये मूवेबल कॉन्ट्रैक्ट था, क्योंकि 10 बोरी सीमेंट प्लस फ्रेट, उसके लिए ये कंपोजिट कॉन्ट्रैक्ट था।
मेरे लिए उसके लिए ये टैक्सेबल था, उसको आईटीसी मिलेगा। मेरे लिए ये इमूवेबल प्रॉपर्टी, मैंने बिल्डिंग बनाई है, अब बिल्डिंग को मैंने सीमेंट को कैपिटलाइज किया तो मुझे नो आईटीसी। तो ये सबने ध्यान में देना बहुत जरूरी है। फिर मूवेबल कॉन्ट्रैक्ट है, वही कंपोजिट है तो उसको आईटीसी मिलेगा। मेरे लिए भी मूवेबल, सीमेंट की बोरी 10 ली, मैंने उसके ऊपर फ्रेट लग के आया, कंपोजिट कॉन्ट्रैक्ट है, पर मैंने उसके प्लांट एंड मशीनरी का फाउंडेशन बनाया तो मुझे आईटीसी जरूर मिलेगा। फिर मूवेबल प्रॉपर्टी है, कंपोजिट है, और मैंने उसको बिल्डिंग रिपेयर्स में डाला तो मुझे आईटीसी मिलेगा। वही 10 बोरी सीमेंट मैंने बिल्डिंग रिपेयर्स में यूज किया, या स्टील लिया, लोहा लिया, फ्रेट के साथ आया तो मुझे आईटीसी जरूर मिलेगा। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखना चाहिए। अब आईटीसी के अंदर ब्लॉक क्रेडिट में वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का क्या है ये हम देख लेंगे जाते जाते, कहां पर क्रिटिकल डिबेट हो रही है। 17(5)(c) ये सेक्शन है जहां पर वो बोलता है कि वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट अदर देन प्लांट एंड मशीनरी अगर है तो आपको हम आईटीसी नहीं देंगे। फिर 5D क्या बोलता है कि आपने गुड्स अलग से लिए, सर्विसेज अलग से लिए और इमूवेबल प्रॉपर्टी बनाई अदर देन प्लांट एंड मशीनरी, यानी यहां पर मैंने कॉन्ट्रैक्टर को काम दे दिया कंप्लीट काम, और अगर बिल्डिंग बनाई तो भी नहीं। और यहाँ पर मैंने सीमेंट अलग से लिया, स्टील अलग से लिया, मैंने पेंट अलग से लिया, मेरे खुद परचेस किए तो भी मुझे नहीं मिलेगा आईटीसी 5D के अंदर। तो 5D में इमूवेबल प्रॉपर्टी बन रही है प्लांट एंड मशीनरी छोड़कर, 5C के अंदर भी इमूवेबल प्रॉपर्टी बन रही है प्लांट एंड मशीनरी छोड़कर, यानी मैं खुद की बिल्डिंग बनाता हूँ, ऑफिस बनाता हूँ, फैक्ट्री बिल्डिंग बनाता हूँ, शॉप बनाता हूँ तो मुझे नहीं मिलेगा। अदर देन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, यानी कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह जो रहते हैं उनके लिए ये मिलेगा आईटीसी। अब नीचे एक्सप्लेनेशन दिया है कि सी और डी क्लॉज, यानी ये दोनों के लिए कंस्ट्रक्शन का मतलब दिया है, कंस्ट्रक्शन इंक्लूड्स रिकंस्ट्रक्शन, रिनोवेशन, एडिशन, अल्टरेशन और रिपेयर्स टू द एक्सटेंड ऑफ कैपिटलाइजेशन टू द सेड इमूवेबल प्रॉपर्टी। मतलब मैंने अगर P&L को डाल दिया खर्चा तो मुझे आईटीसी मिलेगा, पर कैपिटलाइज किया तो नहीं मिलेगा। अब नीचे एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन दिया है, वो एक्सप्लेनेशन ये है कि प्लांट एंड मशीनरी जो हम ऊपर दे रहे हैं 17(5) में, वो apparatus आएगा, इक्विपमेंट आएगा, मशीनरी आएगा, फिक्स टू द अर्थ, फाउंडेशन एंड स्ट्रक्चर सपोर्ट टू दैट, वो भी इसके अंदर आएगा। इंक्लूड सच फाउंडेशन एंड स्ट्रक्चर्स बट एक्सक्लूड्स, ये यहां पर धोखे की घंटी है, लैंड, बिल्डिंग और एनी सिविल स्ट्रक्चर, ये नहीं जाएंगे। जैसा अगर मैंने मशीनरी बनाई है, वो मशीनरी के लिए मैंने छोटा सा फाउंडेशन बना दिया तो प्लांट एंड मशीनरी है, पर वो मशीनरी के लिए मैंने शेड बना दिया तो वो सिविल स्ट्रक्चर हो गया, वो प्लांट एंड मशीनरी में नहीं जाएगा। टेलीकम्युनिकेशन टावर, ये प्लांट एंड मशीनरी में नहीं जाएंगे। पाइपलाइन लेड आउट ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसेस के बाहर की पाइपलाइन है, जैसा कहीं ओटीपी प्लांट है या ईटीपी प्लांट है, वो बहुत दूर है, मेरे फैक्ट्री से दूर है, मैं वहां पर वो पूरा सीवरेज छोड़ रहा हूँ तो वो मेरा फैक्ट्री बिल्डिंग के बाहर की पाइपलाइन है तो मुझे आईटीसी नहीं मिलेगा। और यहीं पर सबसे ज्यादा झगड़ा हो रहा है, जो कोर्ट्स के अंदर गए हैं, तो सफारी रिट्रीट के अंदर यहाँ पर जजमेंट ओडिशा हाईकोर्ट का आया है कि 17(5)(d) जो है ये गलत है, और यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल इसका सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज हुआ है, और वो ये चैलेंज हुआ है कि 17(5)(d) का ऑब्जेक्ट जो है आईटीसी को रिस्ट्रिक्ट करने का है, और हमारे को आईटीसी मिलना चाहिए, भले ही हम इमूवेबल प्रॉपर्टी बना रहे हैं, वो होटल्स बना रहे थे तो होटल्स के ऊपर आईटीसी मिलना चाहिए। तो टेक होम क्या है सब पार्टिसिपेंट्स के लिए कि अगर आपके पास में कोई होटल का क्लाइंट है, मॉल वाला कोई क्लाइंट है, तो आप आईटीसी ले लो सफारी रिट्रीट का ये करते हुए, पर ये क्रेडिट यूटिलाइज मत करो, क्लेम कर लो, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने तक रुको, और फिर बाद में अगर वो आया अपने फेवर में तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो रिवर्स कर दो, नो इंटरेस्ट, नो लॉस प्लानिंग, क्रेडिट तो मिला, फेवरेबल जजमेंट आया, नहीं आया तो रिवर्सल।
तो जो भी आपके पास में बिल्डर्स है, कॉन्ट्रैक्टर्स है, या जो भी आपके पास क्लाइंट्स है, अगर वो कोई रेंट के ऊपर शॉप्स दे रहे हैं, रेंट के ऊपर बिल्डिंग दे रहे हैं, रेंट के ऊपर मॉल बना रहे हैं, तो आप उनके क्रेडिट्स ले लो। क्रेडिट्स लेके वो यूटिलाइज मत करो। फेवरेबल जजमेंट आया तो आगे फायदा होगा, क्योंकि 2 साल के बाद जजमेंट आया तो बाद में क्रेडिट नहीं यूटिलाइज करते आएगा। तो वन कैन टेक नोट ऑफ दिस इंपॉर्टेंट फाइंडिंग फ्रॉम आवर डिस्कशन एंड टेक अ कॉल। फिर ये हिंगन घाट का टेक्सटाइल का भी एक महाराष्ट्र हाईकोर्ट का गया है, यहाँ पर भी कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज किया है कि हम टेक्सटाइल पार्क बना रहे हैं बड़ा MIDC के जैसा, और वहां पर हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, एनुअल रेंट पे देंगे, लीज पे देंगे, तो ये हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज है आर्टिकल 14 का, और ये हाईकोर्ट ने एक्सेप्ट भी किया है और इसकी भी नोटिस दे दी है। तो महाराष्ट्र का भी जजमेंट गया है कि हर इमूवेबल प्रॉपर्टी को ITC डिलाई नहीं हो सकता, रेंटल अगर है तो आपने देना चाहिए। RR केबल का भी जजमेंट है जो सब लोग आगे वॉच करो, यहाँ पर भी कॉन्स्टिट्यूशनल 17(5) को चैलेंज किया है, नोटिस इशू किए है, तो वहां पर भी उन्होंने बोला है कि हमको ITC मिलना चाहिए अगर हम रेंट पे दे रहे हैं तो। और अब ITC के ऊपर कोई ARs है क्या, तो ITC के ऊपर सत्यजीत ब्रिचन प्राइवेट लिमिटेड का AR है, वो बंड्स बना रहे थे, वो बंड्स को उन्होंने ट्रीट किया है बिल्डिंग, और उसका ITC यहाँ पर नहीं दिया था। फिर एक तरुण रियलिटीज का है, यहाँ पर भी वो सीवरेज ट्रीटमेंट वगैरह वो प्लांट्स बना रहे थे, और ये सारे जो प्लांट बना रहे हैं ये मॉल का पार्ट होते हैं, सिविल स्ट्रक्चर हो रहा है, इसके वजह से वो ITC नहीं दिया था उन्होंने। फिर बाद में निप्रो का भी जजमेंट है, एयर कंडीशनिंग चिलिंग यूनिट्स है, वो मैन्युफैक्चरिंग का होता है, तो ITC दे दिया था। वी वर्क का भी एक इंपॉर्टेंट AR आया था, स्लाइडिंग डोर्स, ग्लासेस वगैरह जो है उसके ऊपर ITC मिलेगा क्या, तो ऊपर के अथॉरिटीज के अंदर भी यहाँ पर इसका चैलेंज हुआ, एडवांस रूलिंग के अंदर भी गया, और वहां पर उन्होंने बोला कि ये जो डिसमेंटल वगैरह जो हो रहा है ये फर्नीचर फिक्सचर है और इसको डिटैच कर सकते हैं, तो इसको ITC आपको मिलना चाहिए। तो इन्होंने लोअर अथॉरिटीज को यहाँ पर रिजेक्ट किया और ITC अलाउ किया मूवेबल फर्नीचर के ऊपर। फिर यूनिटी ट्रेडर्स का भी जजमेंट है, वहां पर ITC नॉट एडमिसिबल दिया, कंस्ट्रक्शन ऑफ वेयर हाउस का 17(5)D में ब्लॉक किया था। फिर ये प्लाम्स लस प्लाम कोऑपरेटिव का भी जजमेंट है, यहाँ पर उन्होंने लिफ्ट बनाया था सोसाइटी में, तो लिफ्ट को उन्होंने ब्लॉक कर दिया, बोला कि ये प्लांट एंड मशीनरी नहीं है, इट इज अ पार्ट ऑफ बिल्डिंग, उसका ITC नहीं दिया। फिर ये वरालक्ष्मी का भी AR है तमिलनाडु का, यहाँ पर जो मटेरियल परचेस किया था उसके ऊपर मैरिज हॉल बनाया था, तो वो मैरिज हॉल का ITC मिलना चाहिए। फिर वेस्टर्न कंसेशंस प्राइवेट लिमिटेड का भी एक AR है, पाइपलाइंस उन्होंने बनाए थे, उनका बिजनेस ही है गैस सप्लाई करने का, पर इसको डिनाई कर दिया कि फैक्ट्री के बाहर है, इसके लिए हम नहीं देंगे। तो ऐसे कई जजमेंट्स, कई ARs हमारे सामने हैं कंपोजिट सप्लाई के। नाउ द टाइम हैज कम दैट वी शुड कंक्लूड। तो मुझे ऐसा लगता है कि कंपोजिट सप्लाई क्या है पहले ये स्टडी करो, फिर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा, मूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, फिर उसके शेड्यूल एंट्रीज सब लोग देखे और वो हिसाब से ही जजमेंट ले। सो प्लीज चेक दैट फर्स्ट इट्स फॉल अंडर द कंपोजिट सप्लाई टेस्ट, देन इट फॉल अंडर द वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट टेस्ट, इमूवेबल प्रॉपर्टी का भी टेस्ट आप देख लो, ड्राफ्टिंग क्या हो रहा है टेंडर्स का, कॉन्ट्रैक्ट का, डिविजिबल है, इंडिविजिबल है, फिर गवर्नमेंट है, नॉन गवर्नमेंट है, उसका शेड्यूल एंट्री देखो, फिर उस हिसाब से अपने को प्लेस ऑफ सप्लाई, सर्विसेज है तो अलग होता है, गुड्स है तो अलग होता है। फिर ITC के लिए भी चेक करो कि क्या हो रहा है 17(5) का ब्लॉक क्रेडिट में, बिल्डिंग है क्या, प्लांट एंड मशीनरी है, सिविल स्ट्रक्चर के ऊपर ही सबसे ज्यादा बवाल है। फिर सफारी रिट्रीट, हिंगन घाट और RK केबल का ये जो जजमेंट है इसको वॉच करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट्स है। फिर डेवलप प्लॉट का AR तो ऑलरेडी हमने देख चुके हैं। विद दिस वर्ड्स, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, सॉरी फॉर एनी एरर्स एंड ओमिशन इन माय लेक्चर, कीप लर्निंग, keep going, that is the mantra, and you can anytime contact me on my mobile number or on email. You must be receiving my Kernity emails, you can send me queries. With this I end my session and hand over the mic to the
organizers, and I will stop my sharing. Thank you. Yes, Sanjay ji. Yes, Abhishek ji, please carry over the session. Yes, thank you very much, Umesh Sharma sir, Regional Council Member of WIRC. कोई So queries ले respected, Sir, Abhishek ji, please take queries before giving vote of thanks. okay. यहाँ पर एक क्वेरी आई है सर, लेक सूत का सर, सेल ऑफ कंप्लीटेड बिल्डिंग विल बी केस ऑफ एग्जम्प्ट सप्लाई और नो सप्लाई. एग्जम्प्ट सप्लाई के डेफिनेशन में उन्होंने नॉन जीएसटी सप्लाई भी लिया है, तो ये सप्लाई के डेफिनेशन के अंदर सेल में तो आता है, पर ये एग्जम्प्ट सप्लाई में चला जाएगा. तो नो सप्लाई वर्ड भी अगर हम यूज करेंगे तो एग्जाम सप्लाई की डेफिनेशन बहुत बड़ी की है, सो इट्स अगेन फॉल इनटू दैट. तो एग्जाम सप्लाई के डेफिनेशन में कवर हो जाएगा. फिर जोमन जी का यहाँ पर एक है सर, इन केस ऑफ रेस्टोरेंट एंड बार देयर इज अ जीएसटी सप्लाई of food items and non-GST supply of spirit. Suppose the restaurant is paying rent on the premises, whether they have to reverse input tax credit of GST paid on rent proportionately. If yes, then whether the non-GST supply of spirit is treated as an exempt supply. Also, there is no set off is available in VAT if it is treated on proportionate basis. ये सही क्वेरी है. यहाँ पर भी नॉन जीएसटी इज कवर्ड इन एग्जाम सप्लाई. प्रोपोर्शनेटली अपने को आईटीसी डिसअलाउ करना पड़ेगा रेंट का, जो रेस्टोरेंट का है, टैक्सेबल और एग्जाम के प्रोपोर्शनेट के अंदर रूल 42 के हिसाब से. तो ये क्वेश्चन आंसर्स के कुछ क्वेरीज थे. चैट बॉक्स में कोई क्वेरीज है तो देख लेते हैं. चैट बॉक्स के अंदर कोई क्वेरी नहीं सर, तो नहीं, ये दो chat- क्वेरीज हो गई. यस. Okay, Abhishek, you can proceed for the vote of thanks. Yes, sir. We have covered all the question answer as well as chat box also. So, respected dignitaries of the screen, on the screen, respected Umesh Sharma sir, Regional Council Member of WIRC. So, on behalf of Navi Mumbai branch of WIRC, we thanks to you for giving your valuable time and sharing your vast level of experience as well as knowledge with all our members. You have covered all the composite supply of GST and other complexity issues in ITC as well as AR related issues. So thank you very much, sir. Also, we thanks to our all the galaxy of past chairman, sir, Mr. A.M. Shetty, sir, JD Adhyapak, sir, Manoj, sir, Suresh Ameria, sir, Sanjay Nikam, sir, Manoj, sir, and Tandel, sir. So on behalf of Navi Mumbai branch of WIRC, we thanks to all the members as well as. So thank you very much. Over to Sanjay, sir.